Hello, everyone, and welcome to the new episode of Dr. Shark's podcast. Today, my guest is my friend from Twitter who I have been interacting with very freely on Twitter spaces regarding various topics, including behavioral finance. So, her name is Astha Mehta, and she's from a tech background. She's working with one of the prominent listed companies in India by the name of L&T Infotech, and we are going to ask her about her journey, that how did she end up in technological field and how tech is affecting all of our lives, and what are the suggestions that she wants to give to young kids who want to begin or pursue their career in technology. So Astha, welcome back to the podcast and welcome back. So how are you Okay, feeling? thanks How for the is warm introduction, Dr. Shah. yes. So Astha is one of the our friends who in our group we call as Didi because she exited when we were trash talking. Okay. So Astha, now that you are going back to your office, how has that changed? Because you joined when there was work from home. How is that changed you? Then we'll go to the set questions. Right. So, sure. So life's changed when you work from office, like many practices. Basically, okay, let's consider a doubt solving session or something. You are interacting with your colleague and asking doubt that you are facing or issue that you are facing. Then what happens is on phone you just yeah, spend some time to just recollect and go back and forth setting up the meeting time. But in real life, when he or she is besides you, matlab, the doors are open for you to connect directly and with a more personal touch. And even, yeah, like the coffee chat conversations or something is what I love being in office. And about work from home situation, it was still pretty good. Like they handled it pretty well. Like me being from yeah, like I joined LTI when I was just a graduate, so this was the first corporate life experience that I was having. So the transition, the onboarding part was handled very well, I'd say. From the technical onboarding, basically they gave us training session also virtually via our laptops, and then they provided us the company assets, and then we transformed yeah, like whatever we had, the knowledge we had to the project that we are working on. So those things happened very smoothly, and we didn't have any experience as such of how to actually interact with people in real life. But there were enough training sessions to kind of give us etiquette, like how to interact with client. It's of course like very different from you how you interact with normal colleague or someone. So those kind of information was provided to us. But yeah, like being in office gives more yeah, like overall sense of how to communicate. Yep. Okay, so now since you're traveling to the office, is traveling an Right. issue for you because you are very comfortable working from your home? Okay, is traveling affecting your performance in your job currently? Hmm. Okay, so I'd say like travel takes much time. Since for me, it's a 2.5 hour journey one way. And almost like if it would have been in office for last 2 years, then it would have been very hectic. So I would have considered other options like settling near the office somewhere, or yeah, somewhere somewhat like this. But currently we have hybrid models. So we only attend office for let's say 2 or 3 days out of the 5 working days. So that's why like being at home also works, and travel doesn't affect much because we already have the day planned, like this are the tasks we need to complete, and then we'll manage it after the next day that we come or we work from home. We manage the load, so on, like if travel takes much time, then those things are managed. Hmm. But overall I'd say like productivity, in terms of productivity, it works both ways. So every kind of option has its own benefit. Like work from home is flexible. I can maybe dedicate my productive times of morning towards the code. But when I actually travel and go there, it's afternoon when I actually get to start the task that I'm working on. So yeah, it's different, but overall adjustment has been good. पता है क्यों ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्विटर पे या फिर मेरे फ्रेंड्स या फिर सत्यम के फ्रेंड्स जो टेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फॉर दैट मैटर आप Correct. किसी भी ऑफिस में काम करते हो, तो ट्रैवल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है उसका।
क्योंकि अगर आप उतने ही 5 घंटे एक्स्ट्रा अपने काम में दे सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ घंटे, 3 घंटे, चलो 2 घंटे आप निकाल दो रेस्ट के उधर उधर के, अगर, तो मैं वो वही पूछना, मतलब जानना चाहता था तुम्हारा ओपिनियन, बिकॉज तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करती हो टुवर्ड्स योर ऑफिस और फिर वापस घर जाती हो, तो थकता तो है बंदा, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप ऑफिस के बाजू में रहते हो 15-20 मिनट दूर, तो वो आपको बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। उतना ही टाइम आप अपने रिसर्च में दे सकते हो, या आपको कुछ साइड हसल करनी है उसमें भी आप लगा सकते हो, है ना। चलो अभी तुम्हारी जर्नी की बात करते हैं, जो सेट क्वेश्चंस हैं उस पे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम्हारे होम एनवायरनमेंट का, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा है तुम्हारे एजुकेशन पे, ठीक है। क्या बचपन से वो तुम्हें मोटिवेट करते थे कि तुम पढ़ो, ठीक है, तुम पढ़ाई करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, तुम सक्सेसफुल हो जाओगी, या वो ऐसे बोलते थे कि ठीक है भाई तेरी मर्जी है तो तू पढ़, तेरी मर्जी है तो तू नहीं पढ़। अच्छा, क्या ऐसे बोलते थे कि साइंस ही करना है या कॉमर्स करना है या तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनना है, ओके, या तुम अपने किसी फ्रेंड के पेरेंट्स से या किसी कजिन से इन्फ्लुएंस्ड हो। और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि फॉर्मल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है किसी के लिए, चाहे वो आगे एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करे या चाहे वो जॉब करे, ओके। बिकॉज आजकल क्या है ना, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है सोशल मीडिया पे, कि आप यूट्यूब पे सब कुछ सीख सकते हो, इलॉन मस्क कैसे बोलता है, क्या जरूरत है स्कूल जाने की, यू कैन एक्वायर नॉलेज फॉर फ्री, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। एनीवेज अगर आप सिस्टमेटिकली देखो तो स्कूल में उतनी सारी चीजें नहीं सिखाते हैं जो प्रैक्टिकली हमें लाइफ में काम आती, करेक्ट है ना। बट I believe that it teaches you a certain amount of discipline. Whether you become a graduate in BCom or whether you become a graduate in dentistry, I think एक फॉर्मल डिग्री आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। तो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले तो तुम्हारे होम एनवायरनमेंट का, पेरेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस था, फैमिली मेंबर्स का, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग योर एजुकेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि आज तुम जॉब कर रही हो बिकॉज तुमने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, ओके। वैसे तो बताओ। श्योर। तो ओके, लेट मी स्टार्ट विद सम हाई स्कूल वाला बैकग्राउंड। तो इनिशियली मतलब मैं पहले से ही ऐसे थोड़ी नर्डी टाइप्स रही हूँ, लेट्स से कि हर सब्जेक्ट में मतलब बिना कुछ पढ़े भी भाई कर लेंगे ऐसे मैनेज अच्छे डिसेंट स्कोर्स। तो लाइक ग्रेजुअली पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि हम मिडिल क्लास है, मतलब एजुकेशन का काफी वैल्यू है मेरे घर पे एटलीस्ट। माय मॉम इज आल्सो बीकॉम ग्रेजुएट एंड मतलब काफी पहले से ही मतलब लोग इनटू है, लाइक एजुकेशन में बिलीव करते हैं उसकी वैल्यू को, एंड ऑल्सो दैट इट प्रोवाइड स्टेबल जॉब एंड एवरीथिंग। तो ऑफ कोर्स अगर पेरेंट्स अच्छा चाहेंगे आपके लिए तो वो पुश करेंगे कि हाँ ट्राई करो एजुकेशन, और उन्होंने पहले से ही मतलब विटनेस करके रखा था कि मेरी पहले से ही रुचि है पढ़ाई में, एंड नॉट जस्ट लर्निंग बट मतलब रीडिंग एवरीथिंग इन केस, मतलब वैसे मैं पहले से ही मतलब ज्यादा एक्टिविटीज में नहीं बट बुक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रही हूँ। तो दैट वाज माय बैकग्राउंड, और ये देख के उन्होंने सोचा कि या लेट हर स्टडी एनीथिंग। एंड 10th में जैसे ही बोर्ड के मार्क्स आए और साइंस में मतलब अच्छे थे, 99 आए, मैथ्स में 98, सो मतलब पता चल जाता है किड का एप्टीट्यूड किस में है। नॉट एज इन लाइक मार्क्स जज नहीं करते कि आपका इंटरेस्ट किस में है, बट ओवरऑल मुझे पढ़ाई में भी मजा आता था। तो एंड आई कुड रिलेट विद पीपल्स फीलिंग्स, इमोशंस, एम्पैथी, मतलब थोड़ा ये वोकैबुलरी अच्छा था, ड्राइंग अच्छा था, ये सब चूज करके हम लोग ने सोचा कि भाई मेडिकल फील्ड अच्छा है। Like if I could perceive others feeling, then this is something that I could use it as my strength going on. तो मैंने प्रिपरेशन की 11th-12th में फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, बट वो 2 साल में जो मैंने पढ़ा, आई ऑल्सो केप्ट मैथ्स एज एडिशनल सब्जेक्ट दैट आई वाज लर्निंग, मतलब डिफॉल्ट ऐसे ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारे ऑप्शंस होता है पीसीएमबी में, तो दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो मैथ्स ऑप्शनल होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, बट मैंने मैथ्स और आईटी लिया था, मतलब है इंटरेस्ट लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में वगैरह। तो आई केप्ट इट एज अ सब्जेक्ट, एंड देन मतलब तुक्के में मैंने जेई भी दे दिया, सीईटी भी, मतलब दोनों की दी, इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड। एंड आफ्टर 2 years आई रियलाइज, लाइक जब एग्जाम रिजल्ट आए, ऑफकोर्स मैं मेडिकल फोकस थी तो उसी में ज्यादा स्कोर आए, but somehow I realized that medical was not something which will give me the ability to be creative as such.
मतलब वहाँ पे है कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं एंड दैट्स नथिंग, मतलब इनोवेशन है ऑफ कोर्स, लाइक R&D फील्ड में आप जाओगे तो काफी स्कोप है वगैरह, बट देन आई फेल्ट के नहीं, मतलब मैं शेड ऑफ ब्लड देख के ही डर जाती हूँ, तो आई एम नॉट दैट हार्ड हार्टेड पर्सन who can make logical decisions in situations where emotions come in, like किसी इंसान पे ऑपरेट करना, दैट वाज नॉट माय थिंग। मतलब ऐसे मुझे 2 साल के जर्नी में पता चला एटलीस्ट। तो फिर देन आई पिवटेड माय करियर टू इंजीनियरिंग, और ये सब होते होते मतलब इन शॉर्ट मेरा स्कूल में भी ऐसे ही बैकग्राउंड रहा है कि आई वाज वेरी मच काइंड ऑफ मल्टी इंटरेस्ट थे मेरे। तो मुझे ऐसे वोकेबलरी, मतलब कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें पढ़ना पसंद था, पोइट्रीज लिखना पसंद था, एंड देन मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, आईटी का भी क्या हो रहा है बस ऐसे ही जानना, मतलब आई वाज जस्ट अ क्यूरियस किड। तो जो भी है मतलब डिफरेंट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मुझे बस एक्सप्लोर करना है। सो आई ट्राइड वेरियस थिंग्स, मतलब मैंने ट्यूटरिंग दी, और जो मेरी बायो में नॉलेज थी, मतलब मैंने जब इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर हुआ, और इनफैक्ट उससे भी पहले जब एडमिशन्स थे, तो कैसे मैंने फील्ड डिसाइड की। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग अभी मेरे लिए नया था, तो अभी मुझे सब फील्ड्स तो उतना डिटेल में पता नहीं थी कि मैकेनिकल क्या होती है, केमिकल क्या होती है, आईटी में सॉफ्टवेयर वाली फील्ड्स भी होती है, कुछ कोर ब्रांचेस भी होती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। तो दैट वाज डिसीजन दैट आई टुक कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है जो आपको कनेक्टेड रखेगी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से ही। तो आई थिंक वही मतलब वापस से वो एक्सपेरिमेंटेशन का कीड़ा था मेरे में, तो आई दैट फील्ड एंड मैंने एक्सप्लोर किया। फर्स्ट ईयर थोड़ा ऐसे एंजॉय में ही चला गया कि 2 साल हम लोग ने प्रॉपर मेहनत की है 11th-12th की, तो अभी थोड़ा चिल मोड में आ गया है। मतलब स्टार्टिंग में बिलोंगिंग भी नहीं लगती थी, ऐसा लगता था कॉलेज में यार ये लोग ने तो पहले से ही इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई की और ये लोग आ गए हैं यहाँ पे, लाइक सीइंग पीयर्स। बट माई बैकग्राउंड वॉज अ लिटिल डिफरेंट, मैं मेडिकल की पढ़ाई करके मतलब ऐसे फिट होना चाहती थी वो एनवायरमेंट में। बट देन आफ्टर दैट आई रियलाइज जर्नी, माई जर्नी वुड बी डिफरेंट, मतलब ये पहले एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और उसके बाद मैंने अपने इंटरेस्ट ऐसे ही एक्सप्लोर करने शुरू किए, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आते थे बस सब एक्सप्लोर करूंगी, ऐसा नहीं कि बायस्ड तरीके से किसी चीज को देखे हम, जो भी आते थे देखती गई, एंड देन आई लर्न मोर अबाउट देम। तो सेकेंड ईयर में हमें इंटरनल्स आए, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये सब चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हुई ये सब्जेक्ट्स। तो देन आई ग्रेजुअली डिस्कवर्ड के माइक्रो प्रोसेसर्स इज समथिंग, मतलब ऐसे डिजिटल प्रोसेसिंग वगैरह में मेरा इंटरेस्ट है। तो आई काइंड ऑफ डेल्व डीपर, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, उससे मुझे पता चला कि देयर इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इनटू हार्डवेयर। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका मतलब आर्डिनो पे कोड लिखना था हमें, मतलब ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ कार, ये हम डिवाइस कर रहे थे। थोड़ी स्पीड कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 100 की स्पीड पे हो तो गाड़ी को कितना पहले से ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी, वर्सेज आप 30 के स्पीड पे हो तो आराम आराम से ब्रेक मारो। तो ये लॉजिकल चीज है, मतलब आप कैसे सर्किट इंप्लीमेंट करोगे और उसका कोड कैसे लिखोगे। तो ये समझ में आया कि विदाउट हार्डवेयर पार्ट्स यू कैन एक्चुअली सिमुलेट थिंग्स वाया सॉफ्टवेयर, तो उससे उसका इम्पैक्ट पता चला। और तभी मतलब धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स भी बैकग्राउंड में शुरू हो रहे थे, थोड़ा इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, आई वुड से। तो ये सब से मुझे पता चला कि हम मशीन को कैसे एक्चुअली लर्न करवाता है चीजें, वरना तो हमें मैजिक ही लगता है कि मशीन कैसे पहचान पाता है, या मोबाइल इंटरनेट के थ्रू कैसे ये चीजें होती है कि ये एक चेयर है, ये आइसक्रीम है, ये कैसे पता चलता है। तो मुझे ये सब के पीछे का मैथ्स पता चला थोड़ा, एंड देन वो बैकग्राउंड से मतलब मैंने थोड़ी एक्सप्लोर की मशीन लर्निंग, पाइथन वगैरह से चीजें। तो ग्रेजुअली मतलब सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, फिर वेब डेवलपमेंट शुरू किया, ओपन सोर्स थोड़ी मेंटोरशिप्स ट्राई की मैंने खुद भी, खुद सीख के। एंड देन हाँ, आई वाज अ मेंटी एज वेल एज मेंटोर फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो तो ये सब सोचो, एक्सप्लोरेशंस जो है थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट। हाँ हाँ। आई एम सॉरी मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो, यू हैव बीन सो लकी दैट पैसिवली you did your own behavioral analysis and you realized okay, just because I am good in biology doesn't mean I will be a very good doctor or a medical professional. Based on your nature, based on your temperament, that okay, I cannot behave in a highly emotional atmosphere where there is pressure of saving somebody's life or operating on a human body. Okay, so this is very important for people who are trying to choose a career for themselves, whether it is medical, whether it is professional, whether in hospitality or anything. ठीक है,
अब ये तो आप लकी थे कि पैसिवली आपने खुद का एनालिसिस कर लिया, लेकिन मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप लोग प्रोफेशनली जाके एनालिसिस करवाओ, बिहेवियरल एनालिसिस Right. करवाओ कि वेदर यू आर फिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल और जॉब मेंटली और नॉट. ओके. हाँ, because just because somebody is very good in reading books doesn't mean that that person is going to operate at a optimum level practically. अब जैसे तुमने टेक के लिए बातें करना चालू की, कैसे तुम एकदम फ्लो में बह गई, ठीक है, that is also an indication Right. that you have so much interest, inherent interest in this field. Okay, कि you are trying to give knowledge to other people who are listening to this podcast. Okay. हाँ, कि मेरी ये जर्नी रही है, ये स्टेप बाय स्टेप, एंड बिकॉज यू कुड स्पीक अबाउट दीज टॉपिक्स सो फ्रीली, सो फ्लुएंटली, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटिव दैट यू आर मेंट टू डू दिस. ओके. जैसे मैं हमेशा इसके पहले भी जब तुमसे बात करी है स्पेसेस में, तो मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम्हें इनोवेशन में इंटरेस्ट आता है, तुम्हें या फिर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट आता है ना. जैसे मेडिकल में तुम आती, तुमने कहा कि मुझे वहां पे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिलता, ओके, या फिर मुझे रिसर्च में जाना पड़ता, ओके, जैसे कैंसर रिसर्च में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल एक्सेट्रा. ठीक है. तो अभी फॉर्मल एजुकेशन तो तुमने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे इंजीनियरिंग करनी है. मम्मी पापा ने तुम्हें कभी बोला कि यार हम तो तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे पर तू अभी इंजीनियरिंग में जा रही है? अपोज किया, सपोर्ट किया, या वो न्यूट्रल थे? ठीक है. जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, whatever education I have gained till my MDS, sorry, till BDS, is because of my father and mother. वो मुझे मारते नहीं ना तो मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो मौज मस्ती करने में मजा आता. मेरा अपना कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं था 10th 12th में कि मुझे क्या करना है, एक्सपोजर भी नहीं था इतना. ओके. सो व्हाट आई यूज, जहाँ पापा ने बोला कि ओके साइंस करो तो साइंस किया, फादर ने बोला कि अब MBBS में नहीं डाल सकते, BDS करो तो BDS करा. ओके. हाँ, लेकिन MDS में मैंने वो ब्रांच खुद चूज करी, रेडियोलॉजी की. वो मेरे फादर को कुछ पता नहीं था, वो बोल रहे थे तेरे को जिसमें चाहिए MD कर, लेकिन PG करना ही है. ओके. उसमें से मैंने अच्छे खासे पैसे भी कमाए 4 साल प्रैक्टिस करके, ठीक है, रेडियोलॉजी में. बट when I decided to switch from radiology and I decided that I will end my career as an active practitioner, as a doctor, उसके बाद जितनी भी मैंने academic decisions ली है, whether it is doing a course in HR and administration or doing share market में 6 months का diploma, that are all mind decisions. So wisdom came very late to me. Okay, wisdom came very early to you. Okay, it is a decision of wisdom that you decided that I will not go into medical and I will pursue a degree in engineering. ठीक है. तो what is your opinion now about formal education? Okay. So इससे पहले क्वेश्चन था कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या नहीं ये डिसीजन का. तो दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव ऑफ द डिसीजन कि मैं इंजीनियरिंग में जा रही हूँ, और मेरे उसके मतलब अपने ही रीजंस है कुछ करने के. तो एज सुन एज दे अंडरस्टूड दिस कि मेरी अलाइनमेंट ये इंटरेस्ट में है, एंड आई वाज लकी कि उनका भी सपोर्ट मिला, प्लस इतनी एक्सप्लोरेशंस कर पाई मैं राइट टाइम पे, मतलब राइट कंटेंट के आसपास होना ये भी मतलब एक अच्छी बात है. अगर मुझे पता ही नहीं होता कि ये सब एग्जिस्ट करता है, या मतलब मैं जब एजुकेशन ले रही थी मुझे ये फील्ड्स का पता नहीं होता इतना, तो मैं नहीं कर पाती मे बी. तो yeah, that is one thing. And formal education for me, it has helped me. Okay, so there are two things I think कि अगर बंदे का इंटरेस्ट या पैशन होता है, क्यूरियोसिटी, वो कैसे भी करके वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा. मतलब गूगल से, अगर गूगल रेस्ट्रिक्टेड है तो किसी और से, मतलब लोगों को देख के ही इंस्पिरेशन मिल जाएगी, किसी लोगों को एक्सपीरियंस से. और कुछ लोग होता है मतलब जिनको फॉर्मल एजुकेशन एक डायरेक्शन देता है कि कहाँ प्रोसीड करना है. आपको ओवरऑल चीज पता है कि भाई चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग करनी है, बट उसके लिए कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होता है, ये सब जो सिस्टमेटिक वे में या कोर आपके कॉन्सेप्ट्स जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो एकेडमिक्स से ज्यादा होते हैं. एटलीस्ट मुझे ये जो सब्जेक्ट्स, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम्स पढ़ रही हूँ तो मुझे ये सब चीजें डेटाबेस आ रही है, और ये सब अगर नहीं होता तो मैं कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में चली जाती डेप्थ में, बट मुझे पता ही नहीं चलता कि आजू बाजू की इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, मतलब ओवरऑल सिस्टम्स कैसे फंक्शन करती है. तो दैट्स वाई मतलब जो फेमिलियरिटी मिल जाती है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स से, वो एकेडमिक से स्ट्रॉन्ग हो जाती है. प्लस द वे दैट
मतलब जो 1-to-1 इंटरेक्शंस होते हैं, या ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेशन का अपैरेटस, मतलब आप घर बैठ के क्या ही एक्सपेरिमेंट करोगे। और अगर आप में कुछ है मतलब एग्जैक्टली आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक से खेलना चाहते हो, तो मतलब आपने ला दिया है सोल्डरिंग मशीन घर पे और आप कुछ कर रहे हो, तो वो बात अलग है। बट अगर बेसिक से कुछ सीखना है तो एकेडमिक रूट इज ऑल्सो गुड। ऑल्सो उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह ट्रस्टेड होती है। लाइक लोगों को सिग्नल मिल जाती है कि अगर आपने 4 साल की डिग्री के लिए इतना टाइम स्पेंड किया है तो आपका इंटरेस्ट है उसमें और आपने कुछ तो पढ़ा है। ओके। एंड वर्सेस अगर मैंने बूट कैम्प किया होता तो भी आजकल मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी जॉब और एनी पोजीशन एज पर से। मतलब आप कुछ भी बिजनेस तो खुद कभी भी खोल सकते हो, इनफैक्ट जॉब भी आपको कोई भी लग सकती है विदाउट कंसीडरिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। बट प्रोवाइडेड आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स में भी हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा एक्सपीरियंस से मिलेगी, थोड़े एटिकेट्स वगैरह आप एक जब मिनट, एक्चुअली मीटिंग में बात। हाँ सॉरी मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। क्या बड़ी हाँ कंपनीज हाँ में भी विदाउट एनी ग्रेजुएशन डिग्री इन आईटी जॉब लगती है लोगों की, बेस्ड ऑन राइट। देयर सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग? जैसे सत्यम हमेशा ओके। एक बात करते रहता है कि जी शॉप की इंटर्नशिप्स होती हैं, या गूगल में बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस हैं। सो बेस्ड ऑन दिस, डू पीपल रियली गेट जॉब्स in big राइट। companies like the one which you are working in? श्योर। सो कुछ कंपनीज, ओके, मतलब सब कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स कुछ और होते हैं पर्टिकुलर रोल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्जिकल सम ऑपरेशंस देखने जाओ तो उसमें आपको ऑफकोर्स डिग्री चाहिए। मतलब ऐसे किसी को भी ऐसे खुद से सीखा हुआ सेल्फ टॉट सर्जन देखा नहीं होगा आपने। तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स है स्टैंडर्ड। बट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आई गेस यू आर ओपन टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर। मतलब इनफैक्ट अगर आप डिग्री भी कर रहे हो तो आपका एक्चुअल जो स्किल्स या इंटरव्यूज में काम में आएगा, वो आप जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हो, खुद से प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वो ज्यादा काम में आते हैं। तो दैट इज लाइक इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर डिग्री। मतलब डिग्री विल गिव यू सम बेसिक स्किल्स और उसके ऊपर जो बिल्डअप करना है वो आपको खुद ही करना है। तो अगर आप ये ही अलग से सीख जाओगे, मतलब विदाउट दिस थियोरेटिकल स्किल्स, आपने मतलब एक्चुअल कोडिंग शुरू कर ली, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। मतलब आप कोडर तो बन सकते हो। उसके बाद होता है थोड़ा सा हायर लेवल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, या मतलब एक्चुअल प्रोग्रामर का दिमाग या इंजीनियर्स का दिमाग कैसे अलग होता है बाकी लोगों से। तो मतलब उन्होंने कंप्यूटर्स कैसे वर्क करते हैं, क्यों फास्ट वर्क करते हैं, कैसी सिचुएशंस में, ये सब भी पढ़ के रखा है। सिर्फ कोड नहीं करते कि ऐसा दिखना चाहिए कोई यूआई, कैसे इसको थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग बनाएंगे, थोड़ा एफिशिएंट सिस्टम्स। तो अभी ये भी आप दो चीजों से सीख सकते हो। मतलब या फिर आप कॉलेज थियोरेटिकल वे में सीख सकते हो, या फिर आजकल मतलब कोहोर्ट बेस्ड कोर्सेज आते हैं, उससे सीख सकते हो। आप खुद प्रोजेक्ट्स बनाओगे, दो अलग अलग टाइप के कोड लिख के चेक करोगे कि कौन सा फास्ट रन करता है। तो काफी सारा मतलब पॉसिबल है खुद के एक्सपेरिमेंटेशन से। और बाकी हो गई मतलब सर्टिफिकेट्स की बात। आजकल मतलब उतनी वैल्यू नहीं रही वर्सेस द स्किल्स। मतलब सर्टिफिकेट्स तो आजकल लोग ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब लाइक वॉच द फुल वीडियो, आंसर्स कहीं पे मे भी मिल जाए और देन हाँ, यू गेट दैट सर्टिफिकेट। बट फिर उसकी वैल्यू ही क्या है अगर आपने कुछ उससे बनाया नहीं या सीखा नहीं? तो इट डजेंट मैटर। मतलब वो खाली एक इंडिकेटर होगा आपके रेज्यूमे में लाइंस भरने के लिए। इफ यू सी, मतलब मुझे काफी लेट रियलाइज हुआ ये बट पूरे रेज्यूमे में आप एजुकेशन की खाली 2 लाइन लिखोगे कि आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज एंड मेरे पॉइंटर्स इतने थे, या एक्स्ट्रा और लिखे तो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे एडिशनल। ठीक है। बट बाकी रेज्यूमे में बाकी के पार्ट्स क्या होंगे? एक्चुअली प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके कोई अचीवमेंट्स होंगे कि आपने कोई ऐप बनाया, इतने जन यूज कर रहे हैं इसको। मतलब कोई तो इम्पैक्ट जो आपने क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कमिटी में भी पार्टिसिपेंट रहे हो, कुछ तो मैनेज किया है, मतलब आपने फाइनेंशियल ऑपरेशन या समथिंग, तो वो वाला एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करेगा वर्सेस मतलब आपने जो बाकी ऐसे ही मतलब लिख के रखा है जो सर्टिफिकेट्स। तो दैट प्लस योर प्रोजेक्ट्स, मतलब आपने प्रोजेक्ट्स में ये टेक्नोलॉजी यूज की। मतलब अगर आपने एटीएस सिस्टम्स भी देखी होंगी तो उनको कीवर्ड्स चाहिए। उनको पता नहीं है कि ये भाई कॉलेज के या एजुकेशन के सेक्शन में ही आना चाहिए। आप कहीं पे भी लिखो, वो प्रोजेक्ट में लिखोगे आपने ये टेक्नोलॉजी यूज की, तो भी तो वो पार्सर तो वही मानेगा कि आपने इस पे काम किया है, कुछ तो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है ये टेक्नोलॉजी पे या ये कॉन्सेप्ट पे आपका होल्ड है। तो दैट इज हाउ आई डिस्कवर्ड कि भाई मतलब 4 साल ये जो पढ़ रहे हैं वो तो चाहिए ही, उसके साथ मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए बहुत कुछ। डील कैसे करना है डिफरेंट सिचुएशंस को, मतलब कैसे हैंडल करना है जस्ट कोलैबोरेशन टीम्स को, या फिर इनफैक्ट मतलब खुद से कैसे एक इनिशिएटिव लेके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसको कंप्लीट करना है।
बीच में क्या ऑब्स्टेकल्स जो आएंगे वो ओवरकम करने हैं, प्रॉब्लम के साथ ज्यादा देर तक टिके रहना है. तो दिस इज समथिंग जो मतलब आपको फॉर्मल एजुकेशन भी सिखा सकता है, बट आप खुद से भी ज्यादा सीखोगे ये सब चीजें. तो चलो फॉर्मल एजुकेशन आपको मतलब एक स्टार्टर पॉइंट दे सकता है, एंड देन यू कैन ब्रांच आउट एज पर योर इंटरेस्ट. मतलब आपको बता देंगे एजुकेशन में कि मोबाइल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है, वेब डेवलपमेंट भी, आईओएस भी, और आप अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट कर सकते हो मे बी. और आपको सॉफ्ट कंप्यूटिंग भी एक ब्रांच है. मतलब सबका इंट्रो दिया जाएगा, बट देन यू हैव टू एक्चुअली डू थिंग्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड डिस्कवर योर इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज आपके किस में है, मतलब ओवर टाइम. तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट है, विथ और विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, वो आप पे ही निर्भर करेगा. सो योर क्यूरियोसिटी डिसाइड्स दैट, एंड आई फील मतलब ये सब भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, बिकॉज इन कॉलेज वी हैव टाइम टू डू दैट. तो चलो इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ. ट्विटर पे बहुत सारे लोग फ्रीलांस काम करते हैं, उसमें बहुत सारे टेकीज भी हैं जो फ्रीलांस काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ सम टेकी इज डेवलपिंग एन एप्लीकेशन फॉर मी, if some techie is doing video editing for me, can he write that in his or her resume, and is that task going to benefit her in getting the job or standing out as compared to a student who has just a plain degree? ऑफ कोर्स. तो एनी एक्सपीरियंस वुड हेल्प, बट ऑफ कोर्स रेलिवेंट ज्यादा हेल्प करेंगे. अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मुझे ज्यादा लाइक व्हाट शुड आई से, मतलब ब्राउनी पॉइंट्स देंगे वर्सेस नॉर्मल कोई और चीजें की है. बट इफ से लेट्स से मतलब एक जन ने प्लेन डिग्री की है, एक जन ने प्लेन डिग्री के साथ सम अदर फ्रीलांसिंग एक्सपेरिमेंट्स किया है, तो ऑफ कोर्स उनको मतलब थोड़ा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिल जाएगा रिज्यूमे में. और बोलने के लिए भी काफी कुछ होगा एक्सपीरियंस में, कि मैंने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया, मे बी उनके रिक्वायरमेंट्स कैसे समझी, उसको कैसे ट्रांसलेट किया कोड में. तो देयर इज मोर काइंड ऑफ, या एक स्पेक्ट्रा बढ़ जाता है मतलब बात करने का, या फिर एज इन अपने एक्सपीरियंस दर्शाने का. या दैट्स व्हाट आई फील. तो ओवरऑल मतलब मैं भी अगर एक चीज शेयर करूं, तो कुछ कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मतलब टेक्निकल कंटेंट राइटिंग इसमें, एंड देन फ्रीलांसिंग भी मैं करती थी, क्रिएटिव वाला राइटिंग भी, प्लस मतलब checks.com करके एक साइट है वेर यू कैन सॉल्व प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स, हेल्प पीपल फ्रॉम, या लाइक मोस्टली वहां पे जो पोस्ट करते हैं गिग्स, या जिसको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स बोलते हैं, वो होता है दूसरे यूनिवर्सिटीज से. तो आई डिडंट फील के भाई मैं कभी कहीं पे फिट नहीं हो पाऊंगी अगर एमएस करने भी जाती हूँ या समथिंग, बिकॉज आई कुड इजीली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स समहाउ, क्योंकि मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया कि इनके प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स ऐसे टाइप के होते हैं, ये लोग ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हमें भी सिखाया जाता है यहाँ पे भी. तो मतलब ये थोड़ा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है वो यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह पे सेम टाइप का ही चीजें रहेंगी. एमएस में थोड़ी एडवांस रहेगी डीप में जाओगे तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस. इनफैक्ट मतलब आप किसी क्लाइंट के लिए कोई साइट बनाओगे, उसमें ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, तो मतलब आपको ज्यादा सीखने मिलेगा कंपेयर टू मतलब आप इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट्स बनाओगे. तो या दैट इज अ गुड थिंग. मतलब ऑफ कोर्स ये डिफरेंशिएटर है, मतलब अगर दो रिज्यूमेज में से मुझे कोई सिलेक्ट करना होगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसके पास है ऑफ कोर्स. और ऐसे ही मतलब और भी टेक में प्रोग्राम्स होते हैं, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स बोल सकते हो आप, या मतलब ओके लेट्स से मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको इंटर्नशिप्स के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप्स चाहिए, ये इनफाइनाइट लूप चलता रहता है. तो इससे बाहर कैसे निकले, मतलब इन केस योर रेज्यूमे डजंट या लाइक गेट यू एनी अपॉर्चुनिटी, तो आप क्या कर सकते हो कि ओपन सोर्स मतलब जो कोड सबके लिए ओपन है एडिट, या मतलब आप वहां पे पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो बेसिकली आपकी कोड की, कि मैं ये इम्प्रोवाइजेशन या सजेशन दे रही हूँ और इसका कोड ऐसे हम चेंज करेंगे, समथिंग लाइक दैट. मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो. मतलब बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपको रेटिंग मिलती है, तो मे बी यू कैन या लाइक इम्प्रोवाइज ऑन दैट. तो मतलब आप प्रोफाइल में लिखोगे दैट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटर. एंड एज यू सेड लाइक जीसॉक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं फॉर ओपनशिप कोड कंट्रीब्यूशंस और समथिंग, तो वो भी आप कर सकते हो. आपका टेक्निकल राइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वैसे भी प्रोग्राम्स है. मतलब आप अपनी अलाइनमेंट चूज करो, फिर कोई भी फील्ड में मतलब सक्सेस मिलेगा वैसे. ओके तो अभी मुझे आप दो क्वेश्चन का और एक आंसर दोगे कि हाउ व्हाट वाज द स्टेप बाय स्टेप जर्नी of getting selected into this company. Okay, that is the second question. The first question is
आप कौन से कॉलेज से थे? क्या आप एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूट से थे, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, या आप एक बेसिक से कॉलेज से थे, ठीक है, और उस कॉलेज में कैसे सिलेक्ट हुए आप? Okay, how did you get admission into academics? And after you passed out, what was the first job you did? Or is this the first job in which you're working in? And how did you get selected? So the first question is on academics. How did you get selected into that college? And does being from a good college puts you in a ladder above other people who are from a less reputed college? Okay, and how did you get into this job? Okay, so I'll start with how admissions happen for my college. So I'm from Dwarka Das J Sangvi College of Engineering, which is in Mumbai, Villeparle. So it comes in, I guess, second higher institute or something. IIMs, IITs, jitna nahi, but in Mumbai, it's well known and reputed college, I'd say. And the things that it facilitated me with is proper infra, good, yeah, like people, decent people coming in, and मतलब कुछ ना कुछ goals होते थे, diverse kind of students coming in, जिनके goals कुछ के masters थे, कुछ के proper job companies या startups खोलना थे. तो the crowd was yeah like very good in that. But हाँ, overall वापस से अगर admission procedure पे आए तो जो 11th 12th में हम लोग ने entrance exams दी होती है, उसी से engineering में आपकी admission होती है. उसके अलावा कोई और भी तरीके होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम्स की खुद से अलग से कोई एग्जाम होती है, तो दैट इज एन ऑप्शन, बट आई फॉर माय कॉलेज इट वाज नॉट देयर एटलीस्ट. तो सीईटी से आए हम इंजीनियरिंग में, एंड देन आफ्टर इंजीनियरिंग देयर आर टू ऑप्शंस, लाइक ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स. तो ओके, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में इट डिपेंड्स, लाइक आपकी कंपनी, आपकी कॉलेज जितनी रेप्यूटेड है उतनी ज्यादा कंपनीज जहाँ पे आती होंगी, उसमें भी क्वालिटी ऑफ कंपनीज रहती है, मतलब देयर आर सर्विस बेस्ड कंपनीज हु कम इन, या फिर बिगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विच ऑफर हायर पैकेज. मतलब सेम कंपनी आपको एक कॉलेज में कुछ और पैकेज दे रही होगी, दूसरे कॉलेज में कुछ और, बिकॉज उनको मे भी ऐसा लगता हो कि या द स्टूडेंट्स देयर डिजर्व दिस, और आई डोंट नो लाइक ऑन व्हाट बेसिस दे डिसाइड, बट दैट इज हाउ इट हैपेंस. मतलब जो भी कंपनीज आती है आपको, ऑब्वियसली अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज से हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस में बढ़ जाएगी, बिकॉज ज्यादा कंपनीज आ रही होंगी वहां पे, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे बैठने के डिफरेंट टेस्ट में. दैट इज वन थिंग. उसमें काम में आता है ऑफ कोर्स आपका, मतलब वहां पे सीजीपीए वगैरह मैटर करता है, बिकॉज इफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स आर देयर, तो मतलब हाउ वुड यू लाइक बी सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस. मतलब एक क्राइटेरिया हो जाता है कि डिसेंट 7.5 या 8 सीजीपीए से अबव हो तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड में. मतलब ये खाली सिलेक्ट एप्लीकेट, मतलब एलिजिबिलिटी काइंड ऑफ टेस्ट हुआ. उसके बाद होता है ऑनलाइन असेसमेंट एप्टीट्यूड के बेसिस पे. तो ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस लोगों को नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट्स को होता है ये वाला फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड असेसमेंट, जिसमें लॉजिकल कोडिंग क्वेश्चंस ये सब का मिक्सचर होता है, कुछ ना, मतलब पॉइंट्स और इनफैक्ट ग्रामेटिकल वाले भी क्वेश्चंस होते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द टेस्ट. कुछ कंपनीज कोडिंग भी इसी में इंक्लूड कर देती है, कुछ अलग से और एक राउंड रखती है उसका. And then after that the bifurcations are based on, मतलब कंपनी से कंपनी ये प्रोसीजर डिफर करता है. कोई डायरेक्ट सीटीओ वाला, मतलब लास्ट एचआर हायरिंग मैनेजर साथ में रख देंगे, कोई अलग अलग से रखेंगे, एंड सो ऑन थिंग्स हैपन. तो सबके लिए अलग थोड़ा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी है. इसीलिए ऑफ कैंपस में क्या होता है कि आपका सीजीपीए वगैरह तो मैटर करेगा नहीं करेगा, इट डजंट मैटर, मतलब कुछ तो डिफरेंशिएटर होना चाहिए आपके रेज्यूमे में. तो अभी क्या आपको एक एज दे सकता है, तो दैट इज वन इज ऑफ कोर्स, मतलब बहुत सारे चेक, ऐसा समझिए कि बहुत सारे चेकलिस्ट के आइटम्स है. एक तो है कुछ अच्छा दिखाने के लिए आप रेप्यूटेड कॉलेज से हो, प्रीमियर कॉलेजेस से, जैसे आपने बोला, दैट इज वन ऑप्शनल चेकबॉक्स. देन अदर कुड भी आपने क्या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस किए हैं, आपके कोई ऑलरेडी एप्लीकेशंस है जो आपने गूगल प्ले स्टोर या कहीं पे डिप्लॉय किए हैं और लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट दिखा सकते हो आप अपने रिज्यूमे में. देन देर इज आपको सीजीपीए अच्छा है, आप भले कोई भी कॉलेज से हो, बट दैट ऑल्सो मैटर्स. मतलब कोई तो एक आपको, मतलब वो वर्च्यू सिग्नलिंग जैसा हो गया कि इन केस, हाँ, मतलब ये सब चेकबॉक्स में से आप जितने ज्यादा टिक करोगे उतना ज्यादा आपका लाइक बढ़ जाएगा नेक्स्ट राउंड में जाने का प्रोबेबिलिटी और चांस. दैट इज व्हाट आई वुड से.
तो बहुत सारे तरीके हैं, सबको चेक करना जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल डेवलपमेंट भी करो, वेब डेवलपमेंट भी, ये भी वो भी। मतलब आप ब्लॉग्स भी लिखना शुरू कर दो, वीडियोस भी बनाना, कंटेंट क्रिएशन भी शुरू कर दो, बट एटलीस्ट कोई इसमें से चेकबॉक्स तो टिक होना चाहिए। मतलब व्हाई वुड अ कंपनी फाइंड यू वर्दी टू वर्क देयर और समथिंग, And how तो did you यू शुड get हैव सम स्किल। selected? And how did you get selected in LTI? ओके, सो दिस वाज एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट। तो इसमें हम लोग को पहले एक राउंड था जहाँ पे आपको मतलब एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग क्वेश्चन की टेस्ट होती थी, एंड देन देयर वर कमिंग राउंड्स। अगर जिसने मतलब कोडिंग में परफॉर्म अच्छा नहीं किया, मतलब दे हैड वन एडिशनल राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, जीडी जैसा। और मतलब वो कोई और रोल के लिए सिलेक्ट हुए, मे बी बिजनेस एनालिस्ट और समथिंग, एंड इवन लाइक डेवलपर्स आल्सो। तो मतलब थोड़े से वहां पे डिफरेंशिएशन हो गया एक पॉइंट। और फिर नेक्स्ट मतलब और एक इंटरव्यू राउंड होता था टेक्निकल वाला। इन दैट यू डिस्कस वेरियस like DSA related questions, and also how could you optimize the code that you had written in earlier test, ऐसा कुछ समझिए। And then final जो भी HR round, mine was like together technical plus HR साथ में हो गया। And then like that was the selection procedure, but इसके पहले भी मतलब background अगर देखने जाए तो ये this was not the only company which I appeared for. So बहुत सारी और companies थी जहाँ पे कुछ में offers थे, कुछ में नहीं थे। So in colleges this happen कि अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो कोई तो ड्रीम कंपनी में, तो आप वो या सिमिलर लेवल की कंपनी में नहीं बैठ सकते, और हायर यू कैन अपग्रेड और समथिंग। तो ऐसा सब होता था। So that is how like it went, like on campus placement तो ऐसी ही थी। Okay. So first of all, so you are very lucky that you ended up in the top profession of the decade. Okay. जैसे ही Right, COVID हुआ, right. तो the use of technology in each and every field has increased. There's a lot of demand as compared to the supply of good people who want to work in this industry or are working in this industry. अभी एक मैं तुम्हें twisted question पूछता हूँ। Suppose करो किसी का selection नहीं होता है, okay? जैसे for somebody like me, मैं इसमें अपना example इसीलिए दे रहा हूँ कि being a doctor, it is easier for me to apply for internships in big hospitals. I get respect as a doctor, not as a administrative professional. तो एक है ना, मेरे लिए डोर ओपनर बहुत इजी हो जाता है कि आई कैन एंटर द हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर एंड देन अप्लाई फॉर द administrative internship. Okay, somebody in technology field who is not getting selected in the interview process due to XYZ reasons. कभी किसी का ड्रॉप आ जाता है, कभी किसी की गैप आ जाती है, ठीक है, कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैन समबडी अप्लाई टू दीज बिग जायंट्स फॉर इंटर्नशिप्स? और ऐसे एप्लीकेशंस को वो लोग एंटरटेन भी करते हैं क्या? इट अगेन डिपेंड्स। मतलब कुछ कंपनीज के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज मैंने देखा है कि जहाँ पे आपको मतलब नॉट मोर देन एक्स मंथ्स ऑफ गैप चाहिए उनको, या फिर 65 से अबव परसेंटेज चाहिए, तो देयर यू कैन। बट देयर इज नो डर्थ ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज, मतलब बहुत सारी और मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट आप इंटर्नशिप का ही एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, इनफैक्ट आप खुद से कोई प्रोजेक्ट बड़ा बनाओगे जो लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका भी काफी वैल्यू पड़ता है, तो उससे भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। व्हाट आई वांट टू से इज यू डोंट नीड टू अप्लाई एवरीवेयर, बट यू नीड टू बिल्ड समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन और सम, हाँ ऐसा कुछ। मतलब आप ही फनल बन जाओ जब के आपको रीच आउट आने शुरू हो जाए कि आप प्लीज ज्वाइन माय कंपनी, समथिंग लाइक। चलो अभी ना, मतलब अट्रैक्टिव सा लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, प्रोजेक्ट्स करो अच्छे, अच्छी रेटिंग्स लेके आओ कॉन्टेस्ट में, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। मतलब अगर आप एक क्राइटेरिया के वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे, मतलब ड्यू टू XYZ रीजन आपके परसेंटेज अच्छे नहीं आए या समथिंग, मतलब और इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, मतलब ऐसा परसेंट या गैप का। मतलब इफ यू कैन एक्सप्लेन इट कि क्यों कम थे या क्यों गैप लिया था आपने प्रॉपर रीजन के साथ, तो दे वुड अलाउ यू, मतलब ऐसा है। ओके, तो अभी ना मैं बहुत लेमैन क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि जब मैं 90s में या अर्ली 2000 में पढ़ता था BDS में, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में भी गए, ठीक है। तो मुझे तो एक्सपोजर ही नहीं था, क्योंकि मैं साइंस के बायो के बाद निकल गया, दूसरे हॉस्टल में चला गया, ठीक है। और वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते थे उनके साथ सिर्फ हम मस्ती करते थे, ओके। और अब मुझे तुम बेसिक बताओ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके, एक सॉफ्टवेयर इनोवेटर और सॉफ्टवेयर टेस्टर, ये इनमें क्या फर्क होता है?
ठीक है, ये लोग का वर्क प्रोफाइल क्या होता है कंपनी में? जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टर का मुझे सिर्फ पता है क्योंकि मैंने एचआर इंटर्नशिप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को हायर किया था फॉर डिफरेंट कंपनीज हु वर डेवलपिंग एप्स फॉर म्यूचुअल फंड, कि ये सेलेनियम टेस्टिंग करेगा, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग करेगा, ये मैनुअल टेस्टिंग करेगा, इतने टर्म्स मुझे पता चले. सो दे वर बेसिकली टेस्टिंग द फ्लॉज in the app as far as I could understand. ठीक है, interacting with Right. them. So ये engineer, innovator, developer और जो tester है, ये लोग करते क्या हैं और इनके अलावा भी कुछ और प्रोफाइल होते हैं क्या, वो थोड़ा बताओ. ओके, तो पहले मतलब टेक्निकल रोल्स काफी एडवांस हो चुके हैं और मतलब काफी सारे टाइप के हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स. तो डेवलपर या इंजीनियर आपने जो नॉर्मल सुना रहेगा उसको एसडीज भी बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में. तो उसमें भी टाइप्स होते हैं कि आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो उसके स्पेशलिस्ट हो, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, इस पे ज्यादा नॉलेज है. मतलब वो थोड़े टूल्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट होता है और आपके इंटरेस्ट, मतलब आप कौन सा काम कर रहे हो, कि आप वेबसाइट में क्या डिसाइड करोगे या क्या बिल्ड करोगे, मतलब कैसा दिख रहा है वो वेबसाइट ये डिसाइड करोगे फ्रंट एंड पे काम करके, या फिर कैसे वो बैकएंड में फंक्शन कर रहा है, मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, कौन सा करेक्ट है या नहीं, वो कैसे फिल्टर आउट कर रहे हो, ये सब लॉजिक लिखते हो तो आप बैकएंड में काम कर रहे हो. फिर और बाइफर्केशन होते हैं, मतलब आप दोनों का मिक्सचर कर रहे हो तो कुछ फुल स्टैक बोलते हैं उसको. फिर और चीजें होती है कि टेस्टर एक टीम में, मतलब अगर आप बेसिक स्क्रैच से समझने जाओ एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग टीम का स्ट्रक्चर, तो उसमें काफी सारे रोल्स होते हैं, टेक प्लस नॉन टेक वाले. मैनेजरियल पोजीशंस होती है, देन देर आर स्क्रम मास्टर्स जो ये पूरे फीचर्स को कैसे बिल्ड आउट करते हैं वो, या टीम्स को हैंडल करते हैं, कौन क्या काम कर रहा है, स्टोरीज मतलब टास्क किसको कौन से असाइन हो रहे हैं, टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं. मतलब कुछ गोल्स रहते हैं कि इफ यू हैव कमिटेड XYZ फीचर टू योर क्लाइंट और टू योर ओन प्रोडक्ट, कि आपने ये सोचा है ये टाइमलाइन में ये कंप्लीट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पे एक नया प्रोडक्ट इंटीग्रेशन कुछ तो कर रही हूँ, एक नया पेमेंट मेथड बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो उसका मैं एंड टू एंड मतलब शुरू से मतलब उसको एक रिलायबल सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, या स्केलेबल भी आगे. एक तो डेवलपर जो एक्चुअली काम करेगा, उससे पहले आता है मतलब थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट जो डिसाइड करेंगे कि कैसा आपका बेसिक सिस्टम बनना चाहिए, मतलब क्या टेक्नोलॉजीज यूज करके, या ओवरऑल जो डिजाइनिंग पे ध्यान देंगे, मतलब तुम्हारे सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर का. तो आर्किटेक्ट्स जैसे रोल होता है जो काफी एक्सपीरियंस लोगों को मिलेंगे. फिर होते हैं मतलब जो एक्चुअल डेवलपर्स या कोडर्स, उनको कुछ मतलब उन्होंने फीचर बिल्ड आउट किया, थोड़े टेस्टिंग भी की, और उसके बाद एक वापस से एक टेस्ट मतलब नए टाइप के टेस्टिंग आते हैं जो कि होते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब ये जो नया फीचर आ रहा है वो किसी और को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब बाकी जो फंक्शंस थे वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं. तो ये सब में भी फिर वापस से बाइफर्केशन है, जैसे मैनुअल या ऑटोमेशन, कैसे ये टेस्टिंग की जा रही है उसके बेसिस पे. तो आप कौन से टूल्स यूज कर रहे हो या कैसे परफॉर्म कर रहे हो टेस्टिंग, उस बेसिस पे डिवाइड होंगे. और देन एनालिस्ट जैसे रोल होता है, मतलब आपका ओवरऑल सिस्टम मतलब कितना एफिशिएंसी से परफॉर्म कर रहा है, या आपके जो भी डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उससे आप क्या इंसाइट्स डिराइव कर पा रहे हो. और बिजनेस रिलेटेड रोल्स भी होते हैं, मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड रोल्स भी, मैनेजर्स या जो डिसाइड करते हैं मतलब कौन से फीचर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी कब बनाने में. एंड देन देयर इज अ टीम, मतलब आपने लोअर अपने एनवायरमेंट्स पे तो टेस्ट कर लिया अपने मशीन पे, पर ये विथहोल्ड कर पाएगा क्या नहीं ज्यादा नेटवर्क्स में, जब एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है आपके सर्वर पे. तो मतलब ये सब हैंडल करने के लिए थोड़े और प्रोडक्शन इंजीनियर्स, मतलब कुछ भी इशू आ गया एक्चुअल सिस्टम में तो कैसे रिजोल्व करेंगे उसको, कौन सी प्रायोरिटी फिक्स करवाएंगे तुरंत का तुरंत. तो ये सब जो चीजें हैं प्रोडक्शन इंजीनियर्स या फिर सपोर्ट इंजीनियर्स, इसमें भी काफी अलग रोल्स है. मतलब आप सिक्योरिटी से रिलेटेड काम साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर से करवाओगे. फिर डेवऑप्स से रिलेटेड काम होता है, मतलब रोज आपकी जो भी नए नए फीचर्स है वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन में जा रहे हैं. बेसिकली एक फीचर कैसे शिप आउट या फाइनली डिलीवर होता है क्लाइंट को, वो डिसाइड करेगा एक पाइपलाइन मैनेजर या इंजीनियर या स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ रोल्स. तो हाँ, ये ऐसे कुछ बाइफर्केट होंगे. फिर मतलब आप एप्लीकेशन बेस्ड रोल भी समझ सकते हो, मतलब वेब मोबाइल ये सब के इंजीनियर्स अलग होंगे कंपेयर टू मतलब जो जिनका एक्सपर्टीज AI या मशीन लर्निंग में है, या फिर मतलब Web3 वाले वर्ल्ड में है. तो ये सब ऐसे बाइफर्केशन होता है. तो सो अभी डोमेन प्लस योर स्किल्स टूल्स. ओके, सो अभी आपने मेरे को इतने सारे रोल्स बता दिए, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स भी होते हैं.
ठीक है। करेक्ट। जैसे एक आईटी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में भी होता है, आईटी डिपार्टमेंट बैंक में भी होता है, आजकल फिनटेक का भी बराबर। चलन है, ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी भी है, ओके, और एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी कुछ होंगी इसकी, कुछ डिफेंस एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। आई डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट द टेक्निकल टर्म्स, बट आई नो दैट टुडे टेक्नोलॉजी इज बीइंग अप्लाइड इन सो मेनी फील्ड्स एंड एट सच अ रैपिड पेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो एक्सरे मशीन्स होती हैं आज उसमें एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि जो इमेजेस होती हैं पहले हम मैन्युअली बनाते थे, जब मैं पीजी स्टूडेंट था तो सॉफ्टवेयर में बैठ के स्लाइसेस अलग करते थे, नर्व मार्किंग्स करते थे, आजकल वो ऑटोमेशन हो गई है। आई जस्ट हैव टू टाइप द रिपोर्ट, आई डू नॉट हैव टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर मैन्युअली, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वुड हैव टू sit on the software, take the certain images, take screenshots and prepare the report on that. Okay, people are saying जब data बहुत बढ़ जाएगा तो AI based reports भी आने लग जाएंगे, ठीक है। तो how did you decide that you want to work in this particular sector? Okay, for example, today IT engineers are working in a social media marketing agency also. Okay, so some kids should not end up in a wrong sector. Okay, how will you guide them that how to select a sector? Okay, जैसे हम कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप करते हैं बीडीएस के बाद या एमबीबीएस के बाद, क्या होता है जब 12 महीने की इंटर्नशिप होती है हमारी इंटरनली कॉलेज की, तो कोई स्किन डिपार्टमेंट में, ऑप्थेल में, ईएनटी में, कार्डियक में, तो बच्चा उसके बाद डिसाइड कर सकता है कि हाँ यार मुझे नहीं जमता है, आई सर्जन में नहीं बन पाऊंगा बट आई विल बी अ वेरी गुड स्किन स्पेशलिस्ट, ओके, या मुझे गायनेक में नहीं जाना है क्योंकि मुझे रात को उठ के भागना पड़ेगा। If I'm a gynec surgeon, if a lady is admitted to my hospital and she is about to deliver the child, the gynec surgeon has to be there. Okay. So somebody who doesn't want to disturb their sleep will not go into that. So how does a student decide that okay, I want to work in TCS? Okay. अच्छा, उसको तो तभी एज ए बिगिनर स्टेज पे पता नहीं रहेगा कि टीसीएस क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है कि सेल्स बेस्ड इंडस्ट्री है, और कौन सी क्लाइंट्स को क्रेटर करता है वो, है ना। वैसे तो वो रिसर्च तुमने करी थी खुद, या तुम गो विद द फ्लो में कहीं पहुंच गई और फिर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया? बच्चा कैसे उसको रिसर्च करे या डिसाइड करे? तो आप जब 4 साल मतलब ऐसे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तब काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उससे भी एक इंटरेस्ट या अलाइनमेंट फाइंड कर सकते हो। आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए रहेंगे आपको पता चल गया रहेगा कि इसके पीछे मैं 2-3 महीने लगा सकता हूँ, बट इसको मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसे कोई अपने आप ही मतलब वो फीलिंग आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इंट्यूशन जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे उतने ज्यादा ऑप्शंस आपको पता चलेंगे कि एटलीस्ट मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मतलब यस या नो, मतलब इसमें नहीं है ऐसा कुछ। और मे बी आपको इनिशियल ट्राई में पता भी ना चले कि क्या एक्चुअली इंडस्ट्री में होने वाला है और जो आपने अभी तक सीखा है। तो दैट इज, हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बोल सकते हैं, गोइंग विद द फ्लो विल गेट यू टू द प्लेस वेयर यू वांट, बट फॉर दैट इन इनिशियल करियर यू हैव टू एटलीस्ट ब्रांच आउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स। उसके अलावा पॉसिबल नहीं है, मतलब या फिर सिर्फ समझ के या सुन के जो हम करेंगे, मतलब दैट डिपेंड्स। आई एम नॉट रियली श्योर वो कहाँ पे ले जाएगा, बट हाँ एक आप समझ सकते हो एटलीस्ट कि इसमें क्या लगेगा, कितनी लेवल ऑफ पेशेंस लगेगी, या मतलब जैसे आपने बोला मेडिकल रोल्स में कि ये टाइम पे आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। सेम गोज फॉर मतलब फ्रंट एंड में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मतलब आपको प्रोडक्शन सपोर्ट या एडहॉक वाले रोल्स ऑन कॉल्स नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी इशू आएगा तो, बट फॉर बैक एंड इंजीनियर्स यू हैव टू या काइंड ऑफ गो देयर। प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए तो ज्यादा, मतलब जब भी इशू आया मतलब इट इज नाइट और डे, मतलब उनके शिफ्ट मतलब वो मैनेज करना ही पड़ेगा। सो दिस आर थिंग्स यू एक्सप्लोर व्हेन यू कम टू द इंडस्ट्री। मतलब ऐसा सब पहले से पता नहीं रहता किसी को, बट यू कैन फेयरली गेट एन आइडिया बाय यूट्यूब और एनी काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, मतलब नॉर्मल गूगल सर्च से भी कि ये इंजीनियर्स क्या करते हैं। तो दिस एक्सप्लोरेशन इज अप टू देम। फॉर मी like being in fintech or coming in fintech was not very much intentional. मुझे पता नहीं था, मुझे इतना पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और मतलब कुछ तो बनाना है यूजिंग सॉफ्टवेयर या टेक फील्ड में जाना है, इतना पता था। एंड देन माय रोल एज एन व्हेन वेंट के मतलब मैंने ये वेब टेक्नोलॉजी सीखी है, उससे मुझे ये रोल मिला। माय प्रोजेक्ट
was yeah, like it's kind of a digital payments kind of handling project. तो हम उसमें काफी मिडलवेयर ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स लाइक फ्रॉड या बाकी भी काफी सारी चीजें मैनेज करनी होती है. मतलब आप बैलेंस लेके आ रहे हो रियल टाइम में या बैच प्रोसेसिंग, तो ये सब जो है वो मुझे प्रोजेक्ट में आके जानने मिला. आई वॉजंट रियली अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. बेसिक लॉजिक पता था कि हाँ हम पेमेंट्स कर सकते हैं, ये वॉलेट से ये वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली यूज देम इन डे टू डे लाइफ. मतलब आपने पेटीएम यूज किया होगा, गूगल पे, तो वो बेसिक इंट्यूशंस रहते हैं. बट एक्चुअल एक्सप्लोरेशन मतलब आप रोल में जाके ही कर सकते हो. तो दैट इज व्हाट आई फील. और उससे पहले मतलब यू कैन जस्ट गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम के डिफरेंट वीडियोस देख के कि हाँ पेटेक सिस्टम्स ऐसे डिजाइन होती है, कुछ और वाली सिस्टम्स कुछ और तरीके से. इनफैक्ट टेक में भी मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट भी है, डिजाइनर्स भी होते हैं. जैसे कि पर्टिकुलरली आपकी वेबसाइट मतलब कैसा फील दे रही है लोगों को, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कलर थीम्स दैट इट यूजेस. एंड इवन एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट भी होते हैं आजकल कि जो भी पर्सन कलर ब्लाइंड या डिसेबल्ड है, तो उनको उनके लिए साइट या इंटरफेस कैसा रहना चाहिए आपका डिवाइस का, ये सब मैनेज के लिए करने के लिए भी लोग होते हैं. तो दैट इज समथिंग मतलब खुद के एक्सप्लोरेशन से आएगा. फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या मतलब सब्जेक्ट्स में जिसमें क्यूरियोसिटी होगी, आप एक्सप्लोर करोगे और फिर और ज्यादा जानने मिलेगा वो फील्ड में. ओके. तो अभी बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जो इंडेक्स का पार्ट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल टीसीएस है, तुम्हारी कंपनी है, एलएनटी इन्फोटेक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है. तो जब आप एक कंपनी में एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम कर रहे हो, तो आप उसका बिजनेस मॉडल समझने का कोशिश करते हो कि एक्चुअली हमारी कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है. ठीक है, अच्छा इसके क्लाइंट्स कैसे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन कैसे होती है, अच्छा क्लाइंट्स हमसे कौन सी सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, उसमें मेरा रोल मैं करंटली क्या प्ले कर रही हूँ, और थोड़ा उस हिसाब से जज करने की कोशिश करते हो कि हाँ यार ये पोटेंशियल है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे इंडस्ट्री और हमारे कंपनी का बिजनेस एक्सपांशन होगा, अगर वो होगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगी. ओके, so do you keep a keen eye on that, and what is your observation about others? Because कुछ लोग हैं ना हॉस्पिटल में, जैसे मैं पर्टिकुलरली डॉक्टर्स की बात करता हूँ, उनमें इतना बिजनेस सेंस नहीं होता है. ठीक है, दे आर वेरी फोकस्ड अपॉन हाउ दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स. मनी कम्स along with it, okay, but they are not the ones who will take a wise decision when it comes to business. There are different departments who run the hospital. Okay, ठीक है. वैसे so as a mid level employee, because अभी तुम्हारे पास 3 साल का experience approximately आ गया है, so do you understand the business model of your company पहले तो, and do you compare it with the other companies, let's say nationally, locally या फिर globally? सो स्टार्टिंग विद यस, मतलब ऑफ कोर्स बेसिक आइडिया तो सबको ही रहेगा कि आप क्या काम कर रहे हो और क्यों काम कर रहे हो उस पर. और ये रहना भी चाहिए. हायर ओवरव्यू एक होगा तो ही मतलब हम एटलीस्ट इम्पैक्ट अपना जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा काम ये इम्पैक्ट लाके दे रहा है. तो आप खुद भी वैल्यूड फील करोगे और आपकी वैल्यू भी आपको खुद को पता चलेगी. लाइक मार्केट में भाई हाँ ये स्किल्स की इतनी डिमांड है और मुझे ये सब आता है और मैं एक्चुअल में डिलीवर भी करती हूँ ये सब क्लाइंट को. तो दैट इज अ गुड थिंग. ये होना चाहिए ओवरव्यू. और मैं एटलीस्ट एक्टिवली एक्सप्लोर करती हूँ ये चीजों को कि एक्चुअली मेरी कंपनी क्या कर रही है या मेरा प्रोजेक्ट या टीम जो है वो कहाँ पे आ रही है. मतलब हायर लेवल व्यू में बाकी टीम्स से कैसे कोलैबोरेशन हो रहे हैं, उनको कैसे हम फीचर्स डिलीवर करते हैं, वो कैसे करते हैं, और ओवरऑल ये बिजनेस को या बैंक्स को या इंस्टीट्यूशंस को कैसे अफेक्ट करेगा ये बिजनेस मॉडल. तो ये एक्टिव एक्सप्लोरेशन नॉट नेसेसरीली, कभी कभी हम काम में ही इतने बिजी हो जाता है कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता ये सब एक्सप्लोर करने का. बट यू नीड टू डू दैट इन case के you when you actively look for change you need to justify the impact of the work that you do. तो that is why ये बहुत काम में लगेगा and eventually मतलब you will also feel valued और हमें पता चलेगा कि actually कौन से parts पे focus करना है आपको काम में.
कि कोडिंग से ज्यादा आपको तरक्की मिलेगी, या फिर मतलब कोडिंग को एक्चुअली प्रेजेंट करने से भी, मतलब ये भी इतनी इक्वली इम्पोर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं. मतलब मैंने पूरे दिन में काम किया बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू एनीबडी दैट व्हाट आई डू. तो ये भी एक मतलब स्किल है बट यू कैन इवन प्रेजेंट इट. सो या दैट्स वन थिंग. तो ओवरऑल आपको इंडस्ट्री का जितना ज्यादा आइडिया होगा यू कुड गेट मोर या लाइक एडवांस इनटू दैट करियर. और हाँ, ज्यादा समझ होगी तो आगे ही बढ़ेगा. ओके. ऑल्सो डिफरेंट कंपनी के एक्सप्लोरेशन भी मतलब काम में लगते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो कैसे अलग चीजें कर रहे हैं. तो आप भी इनोवेटिव आइडियाज उस हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये लोग ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, तो मे बी वी कैन थिंक कि ये हमारा बॉटल नेक है तो हम इसको ऐसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. तो कभी कभी कॉम्पिटिशन स्टडी भी काम में आता है. एंड इवेंचुअली मतलब सिस्टम्स के भी कुछ बेसिक्स होता है, तो उसका भी एक अपडेट रखते रहना. मतलब टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है आजकल, पेमेंट्स ऐसे नहीं मतलब कोई और फॉर्म में ज्यादा यूज हो रहा है. मतलब डिजिटल पेमेंट्स का वॉल्यूम इज मोर देन जो कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. तो ये सब जो इंडस्ट्री की नॉलेज रहेगी तो मतलब आप यू कुड बेटर इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि आज हम 2-3 ग्लोबल जायंट्स का नाम सुनते हैं, ठीक है. तो तुम इस फील्ड की हो तो तुम इन सब कंपनीज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकती हो, ठीक है. जैसे कुछ लोग, जैसे यूट्यूब हो गया, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल जायंट. गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, ठीक है. तो एप्पल हो गया, ओके, ठीक है. सो आर दे innovating technology? Are they just tech marketing companies, ठीक है, or they are just processing data to solve different problems for us via technology? Okay. And how is working, matlab, why didn't you do you desire to work in these global giants, MNCs? Okay. Or you are happy with your current role but you would like to एक्सप्लोर फर्दर वट एवर अपॉर्चुनिटीज कम्स इन फ्रंट ऑफ यू? क्योंकि कुछ लोगों को ना एक ऐसे, क्या बोलते हैं वो लोग, इन्फैचुएटेड होते हैं कि हाँ यार गूगल में काम करूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए होता है कि हाँ यार एक दिन मैं बैंड्रा में ना लीलावती हॉस्पिटल में एडमिन बनूंगा, या एक दिन मैं फॉर एग्जांपल टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में एडमिन बनूंगा. तो मेरे में भी ये इन्फैचुएशन है. मुझे पता नहीं है वो इंस्टीट्यूट्स अंदर से कैसे काम करते हैं या उनका बिजनेस मॉडल क्या है या मेरा रोल क्या होगा, लेकिन हाँ मेरे मन में ऐसे रहता है कि एक दिन मैं जाऊंगा इतनी बड़ी हॉस्पिटल में काम करूंगा. ओके. तो हाउ इज योर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑल दीज कंपनीज एंड हाउ आर दे डिफरेंट? अगर तुम बता सको कि हाउ इज फेसबुक डिफरेंट फ्रॉम गूगल, हाउ इज गूगल डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब, हाउ इज यूट्यूब डिफरेंट फ्रॉम टेस्ला, ओके, एंड हाउ इज, व्हाट इज द रोल ऑफ एप्पल? एग्जाम्पल ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता सको तो. ओके. तो पहला डिफरेंशिएटर इज द प्रोडक्ट दैट दे ऑफर और उनकी कोर वैल्यूज. तो फॉर एग्जांपल गूगल के जी सूट प्रोडक्ट्स आपने देखे रहेंगे, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन innovation along with data and providing technology which is accessible to everyone. Like कोई भी आपके हाथ में मतलब वो पावर देना चाहते हैं. बेसिकली आपका कैमरा कैसे भी हो बट गूगल लेंस से मतलब वो थोड़ा स्मार्ट कैमरा बन जाएगा, ऐसे कुछ. एंड देन अदर डेटा पॉइंट्स एज वेल, मतलब आपको वो कनेक्टेड रखना चाहते हैं अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स. और उनका मार्केट में भी इज लाइक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी इज एड्स को पर्सनलाइज करना. मतलब जो आपके लिए रेलिवेंट है आपको वही डेटा दिखाना. इट कुड बी इन द सर्च इंजिन, क्रोम ब्राउजर, या फिर मतलब कहीं और भी. तो जो भी एड्स आपको दिखती है, व्हाई आर दे पर्सनलाइज्ड? बिकॉज दे टेक दैट डेटा एंड दे हैव दोस पॉलिसीज कि मैं इनको इनको ये इनसाइट्स प्रोवाइड करूंगा. एंड देन दे वुड like get better data for you or give a more good experience. Versus Tesla, maybe it's a research or innovation driven company in, मतलब वो focus कर रहे हैं EVs पे, electric vehicles पे, and how they मतलब they kind of will transform the automobile sector. They are focusing on that problem statement of society, and then maybe they will expand like in different fields as well. तो ओवरऑल ये टेक जाइंट्स को एक कैटेगरी में क्लासिफाई करना इज नॉट रियली पॉसिबल, बट उनके खुद के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और कोर वैल्यूज से हम जान सकते हैं कि वहाँ का मे बी कल्चर कैसा होगा या आप काम कैसा करोगे. तो
जैसे कि गूगल या अल्फाबेट जो उनकी पेरेंट कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स रहेंगे, गूगल, यूट्यूब। तो मतलब आप कहीं ना कहीं जाओगे तो गूगल में भी एड्स पे काम करोगे, उसके नेक्स्ट बिलियन यूजर्स वाले प्रोडक्ट पे काम करोगे और समथिंग, मतलब गूगल क्लाउड पे काम करने वाले हो, तो आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ जाएंगे। टीम्स तो आप मतलब बाकी लोगों के एक्सपीरियंस भी समझ सकते हो, या ओवरऑल वो लोग कैसे पोर्ट्रे करते हैं अपनी कंपनीज को, क्या ज्यादा वैल्यू करता है, मतलब वो इनोवेशन को या फिर डिलीवरी को। जैसे अमेजोन का कस्टमर ऑब्सेशन प्रिंसिपल ज्यादा वैल्यूड है वहां पे, उसके 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स। सो दैट यू कैन गेट आइडिया ऑफ द कल्चर थ्रू दैट डेट्स, और वट मतलब जो भी इंटरव्यूज देते हैं वहाँ की लीडरशिप पोजिशंस, मतलब मे बी फ्रॉम दैट। Apple is, I think, a company which believes in, yeah, like designs and yeah, being a differentiator, और मतलब थोड़ा status driven product, I'd say. और अलग, मतलब उनको उनकी कोर वैल्यूज अलग ही है, आई गेस। बी इट डिफरेंशिएटर इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट दे ऑफर। फॉर एग्जांपल आईफोन, मतलब उनको बनना है कि वो जो मार्केट में एंटर करे वो वहाँ के बादशाह हो, मतलब ऐसा कुछ। एंड देन दे डू इट वाया डिफरेंट things, मतलब obviously innovation would be one Yes, thing. because I am very So surprised. I am using iPhone since 6 to 7 years. Okay, when it comes to functions in the phone, it is a very simple phone. पता है तुम्हें, correct. अगर तुम वन प्लस देखोगी ना तो उसमें 50 ऐसी चीजें हैं जो एप्पल से काफी ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। बट समवेयर अराउंड वो एक ऐसा ना रईसों का ब्रांड बन गया है, समझे तुम, स्टेटस के लिए यूज करते हैं वो जो लोगो है। Yeah, ओके, सो हैव दे branding मार्क जो है, ब्रांडिंग, सो हैव दे एंड इवन फीचर्स लाइक, मतलब लोगों को पसंद आ चुका है एक बार, एंड देन yeah, they could use it for displaying as well as, मतलब उनको उसके फीचर्स पसंद है, how it saves their data, और मतलब वही, मतलब जो बेसिक फंक्शनैलिटीज, कोर फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, प्लस एडिशनल थोड़ा, मतलब हाँ कस्टमर स्पेंड ऑन सम ब्रांडिंग, मतलब कोई तो शो ऑफ हो, या फिर मतलब जो कस्टमर फोकस्ड है फीचर्स पे वो ऐसे वाले फोन लेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन देयर यूज केसेस दे विल परचेस। बट ओवरऑल मतलब सब कंपनीज ट्राई तो करेगी ज्यादा कस्टमर्स या राइट कस्टमर्स को अक्वायर करने में, तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगेगी। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एमएनसीज, तो मुझे पूछना था कि आर यू flirting with the opportunities to go into US and work for these companies? Have you received any offers in the past, or do you desire to go there in the future? And or do you want to work with a company which is going to dominate the Indian market? Okay, ठीक है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मार्केट, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, या ये कंपनीज हैं, जापान हो गया। ओके, सो आर यू फ्लर्टिंग विद दीज अपॉर्चुनिटीज? हैव अपॉर्चुनिटीज कम योर वे इन द पास्ट, या फ्यूचर में तुम्हारा ऐसे कोई सेट प्लान है? क्योंकि काफी सारे लोगों का होता है कि नहीं भाई मुझे तो कनाडा यूएस जाना है, वहां पे डॉलर्स में कमाना ठीक है उन थॉट प्रोसेस होता है, ये भी एक थॉट प्रोसेस है। जैसे मेरा ये कभी थॉट प्रोसेस था ही नहीं। ओके, मुझे नहीं जाना है मैं यहाँ पे, इफ आई हैव टू, इफ आई हैव द टैलेंट आई विल सर्वाइव हियर एंड आई विल बिकम रिच हियर, ओके, बाय डूइंग व्हाटएवर आई कैन, ओके, इन माय कैपेसिटी। सो ऐसे तुम्हारा है कुछ, या पास्ट में कभी हुआ है? ओके, तो ये क्वेश्चन का मतलब शॉर्ट में आंसर यही है दैट आई एम ओपन टू ऑल अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि सबके खुद के प्रोज है। सो फॉर एग्जांपल अगर फिनटेक में ही देखने जाए तो देयर आर कंपनीज लाइक स्ट्राइप जो ग्लोबली पेमेंट्स हैंडल करती है बहुत लार्जर लेवल पे। तो आई समटाइम एस्पायर टू बी देयर, तो जहाँ पे मुझे मतलब एकदम हाई स्केल पे काम करने मिलेगा वैसे वाले सिस्टम्स पे। सो दैट इज वन थिंग। यू आर अनदर इज कि अट्रैक्टेड, इंडिया का भी फिनटेक। you are attracted by the हाँ, pay, you are attracted by the pay, or you are attracted by the amount of new worlds you will, or new dimensions you will explore there with respect to your work profile? okay, so the work and the explorations have always been like my priority फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऐसे टर्म्स में देखने जाए तो जो हाई स्केल पे वो लर्निंग्स प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, दैट इज वन थिंग, एंड अ मिशन दैट आई एम काइंड ऑफ अलाइनिंग विद। तो ये होता है। और फिर इंडिया का फिनटेक स्टेक ऐसा है कि मतलब इट्स क्वाइट बूमिंग।
यूजुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का थोड़े साल पहले तक फोकस था सिलिकॉन वैली में ना कभी जाना है, मतलब ऐसे just because of like the kind of opportunities open there. And but I feel कि आजकल मतलब same kind of opportunities, मतलब वो जो high growth roles होते हैं या फिर इंजीनियरिंग एडवांस्ड वाली जहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन या इम्पैक्ट ला सकते हो, वो इंडिया में भी पॉसिबल है. तो स्पेशली बेंगलोर मतलब जो स्टार्टअप्स के लिए फेमस है. एंड द रेट एट विच इंडिया इज ऑल्सो एडवांसिंग एज अ या लाइक मतलब कोई तो ग्लोबल कॉम्पिटिटर भी है वो फिनटेक स्पेस में. सो दैट इज वाई आई फील के इंडिया स्टेक जैसे इवॉल्व हो रहा है, मुझे उसमें भी कंट्रीब्यूट करना है. बीट आधार, यूपीआई या वट एवर काइंड ऑफ पेमेंट्स दैट दे आर मेकिंग ओपन टू. तो या I can like be a part of advancement overall in fintech domain. मतलब ऐसा अभी फिलहाल लग रहा है current interest के वजह से. And that is provided by both, like इंडिया में काम करके भी और बाहर भी. So I'm open to both. चलो अभी तुमने आधार यूपीआई की बात की है, अगर इस मोमेंट पे तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां से गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, एकदम सिक्योरिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यू विल हैव अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट विद गुड पेंशन, ओके, एंड यू विल बी वर्किंग with the IT department of the government at a higher level, okay, and you will be dealing with all these companies who provide services to the government, okay, in adapting technology in government sectors. Let's say अभी बैंक ऑफ बड़ौदा एक PSU बैंक है, लेकिन उनका भी जो ऐप है वो उतना ही शानदार है जितना HDFC का है, ठीक है. और इन्फोसिस, जितना मैं सुनता हूँ अपनी मदर से, मॉम से, कि इन्फोसिस ने उनको ये ऐप बना के दिया है, ठीक है. हाँ, तो BOB में भी एक IT डिपार्टमेंट है जो ये नेगोशिएशंस को हैंडल करता है, ठीक है, कि कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, या फिर डेटाबेस के प्रोटेक्शन के साइबर सिक्योरिटी के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए. सो वुड यू लाइक टू वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, वो तुम्हें एक सीमित कर देगा, तुम्हारे एक दायरे में डाल देगा तुम्हें. ओके, तो अभी तक के परसेप्शन वो जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट जॉब और ये सब चाहिए, मतलब मेरे दिमाग में वो पहले से ही नहीं रहा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब क्योंकि इनिशियल करियर लेवल है तो आई थिंक आई कैन टेक मोर रिस्क. तो ज्यादा लर्निंग्स जहाँ पे होगी मैं वहां पे जाऊंगी ऑफ कोर्स. तो या दैट इज द बेसिक फोकस. ओके, सो अभी 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज अभी ऑलरेडी 1.5 घंटा हमने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं ना अटेंशन स्पैन शॉर्ट है लोगों का, लेकिन मुझे तो लंबे लंबे पॉडकास्ट खुद तो मैं 3-3 3.5 घंटे 4 घंटे वाली भी सुनता हूँ, ठीक है. अभी मैं उतना मुझे नॉलेज नहीं है, वरना मैं तुम्हें और डेप्थ में लेके जाता ताकि लोग और सीखें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जितना भी मैंने तुमसे इंटरेक्शन किया है कि तुम्हारे अंदर एक टीचर भी है, कि तुम नॉलेज दे रही हो. इतना भी अगर तुमने आज बोला है ना, अगर किसी बच्चे को इसमें से कुछ गेन करना होगा तो वो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ गेन कर सकता है, ओके. तो मुझे आज ये जो टेक कंपनीज हैं उनका ना थोड़ा नाम खराब है, ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली फेसबुक का या गूगल का, ठीक है, कुछ हद तक अमेजोन का भी, कि ये डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, ओके, ये एल्गोरिदम्स को ऑल्टर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं. हम एक बार इंस्टाग्राम पे डॉग वीडियोस जैसे मुझे देखने अच्छे लगते हैं, तो डॉग वीडियोस ही आते हैं कंटिन्यूसली, ओके. मेरे वाइफ को कुछ ऑर्गेनिक फूड अच्छा लगता है, तो उसके फीड जो है वो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेयर उसी से भरा हुआ है. तो do not tell us the industry secrets, but tell us के how is data being used to evolve technology, और क्या डेटा एनालिस्ट जो हैं वो इन टेक कंपनीज में काम करते हैं. वो भी एक प्रोफाइल है क्या, जैसे तुमने पहले 5-6 प्रोफाइल बताए, ठीक है, तो क्या डेटा एनालिस्ट भी उस हायरार्की में कहीं बैठता है? राइट, ऑफ कोर्स. डेटा एनालिस्ट से भी पहले मतलब मैं इन जनरल डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करना चाहूंगी. तो इफ यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, आप कोई भी साइट पे जाते हो वहां पे ऑप्शन होता है एक चेक मार्क टिक करने का कि इफ यू वांट टू कीप कुकीज और इफ यू अग्री टू दिस प्राइवेसी पॉलिसी. हम देखते नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द लीगल थिंग्स बिहाइंड दैट.
बट वी ऑलवेज टिक दैट. तो मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर इलीगली यूजिंग आवर डेटा, बिकॉज दे वांटेड द परमिशन, दे गॉट इट फ्रॉम यू, और आपको वो प्रोडक्ट यूज करना था तो आपने कर दिया. मतलब जस्ट इमेजिन कि व्हाई वुड दे प्रोवाइड दिस सर्विसेज फॉर फ्री. मतलब दे आर होस्टिंग सर्वर्स, उनको भी खर्चा तो लग रहा है. मैं तो अभी करता इफ हूँ ना, कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, उसमें पूछता है वो राइट, कुकीज, कुछ कुकीज का करके ऑप्शन आता है हाँ, कि वो आप क्लिक करोगे तो यस, आप कुकीज इफ फ्री यू वांट में, टू स्टोर देम. हाँ फ्री में आप वर्ड से राइट, पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो वैसे. राइट. हाँ बोलो. हाँ, सो दैट इज वाई, मतलब उनका भी कोई तो बिजनेस मॉडल है, राइट. वो डेटा को यूज करेंगे. नाउ दिस डेटा कुड बी ऑफ टाइप, मतलब आपका पर्सनल आइडेंटिफायर या यूनिक डेटा, मतलब आपका नाम, ईमेल आईडी, वो सब आप मतलब शेयर करोगे गूगल पे, तो एटलीस्ट उनके पास होना चाहिए दैट इन विच अकाउंट दे शुड ट्रांसफर योर डेटा. तो मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेंगे वो. आपकी ब्राउजिंग सर्चिंग हिस्ट्री भी लेंगे, बिकॉज दे नीड टू ऑप्टिमाइज योर रिजल्ट्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टाइपिंग बैट एंड मैंने बहुत सारे क्रिकेट के वीडियोस देखे, तो मुझे वो वाले बैट का मीनिंग वो बताएगा. एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर लाइक, मतलब आप बर्ड लवर या एनिमल लवर हो एंड देन यू राइट बैट, तो मतलब आपको उस हिसाब से फोटोज आएंगे. तो वो कॉन्टेक्स्ट समझना तो चाहेगा आपका भी. तो टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स, दैट इज हाउ दे जस्टिफाई दैट दे आर टेकिंग योर डेटा. एंड एट अदर लेवल, मतलब जो पेमेंट या एक्स्ट्रा अदर इंफॉर्मेशन होती है कॉन्फिडेंशियल वाली, वो लोग लेते हैं कोई कोई केसेस में, जहाँ पे ऑफ कोर्स जब अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट शॉप करते हो तो वो हिस्ट्री उनके पास होनी चाहिए. तो दे विल टेक दैट पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉट ऑफ कोर्स योर पासवर्ड और सीवीवीज, बट जो बेसिक एक कार्ड नंबर है वो लेके रखेंगे. दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन एनक्रिप्टेड मैनर. ऐसा नहीं कि वो लोग बेच देंगे आपका कार्ड नंबर किसी और को, बट दे हैव इट स्टोर्ड. सिमिलरली, मतलब आपकी कॉल हिस्ट्री है, ट्रू कॉलर को जाएगी ऑफ कोर्स. तो ये सब चीजें जो है, बेसिक फंक्शन उनका जो ऑपरेशन या एनेबलमेंट करेगी, वो डेटा जाएगा उनके पास. एक्स्ट्रा डेटा ऐसा जाएगा कि योर जीपीएस और समथिंग. तो अगर गूगल मैप्स फॉर एग्जांपल आप ले लो, तो हाउ दे फिगर आउट एंड गिव यू द बेस्ट रूट, मतलब जहाँ पे ट्रैफिक कम है, तो वो आपका जीपीएस ही इनफैक्ट यूज कर रहा है. तो मतलब दे आर यूजिंग इट फॉर गुड, एंड दे आर ऑल्सो सेलिंग योर डेटा बट एनोनिमसली. मतलब वो बोलेंगे कि सम एक मतलब 20 years मेल इज काइंड ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम एक्स लोकेशन टू जेड लोकेशन. मतलब ये सब जो होता है फेसबुक पे, अगर आप देखोगे, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने पुट आउट की है वो उनके पास होगी ऑफ कोर्स. अगर आप बोल रहे हो आई एम फीलिंग हैप्पी, तो दे वुड नो दैट यू आर फीलिंग हैप्पी. मतलब सो वो आपके मूड को जज कर सकते हैं कि इन दिस कंट्री, मतलब वो ओवरऑल कलेक्टिव डेटा किसी और को देंगे. ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली यही इंसान ने ये स्टेप्स किए हैं तो मैं उसको पूरा मतलब एग्जैक्ट डेटा किसी और कंपनी को नहीं दूंगी, बट कलेक्टिव इंसाइट्स दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल मुंबई में ये वाले टॉपिक्स पे ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है और समथिंग, मतलब एवरीबडी ट्रेंड, लव्स दिस. तो ये एक ट्रेंड कलेक्टिव दे डेटा सकते जो हैं, होता है, एक ट्रेंड दे करेक्ट, सकते हैं करेक्ट. उनको. हम्म. हाँ, ट्रेंड एनालिसिस करके वो लोग ये डेटा को सेल करते हैं थर्ड पार्टीज को, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू अर्न थ्रू एड्स एंड सो ऑन. तो आपको कैसे वो फेसबुक पे वो प्रोडक्ट दिखेगा, मतलब फॉर एग्जांपल इंटर ऐप डेटा भी होता है. अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया है तो वही सेम प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे भी दिखना शुरू हो जाएगा. तो दे आर यूजिंग दैट हिस्ट्री या मतलब कैश आपके बेनिफिट के लिए ही, मतलब ओवरऑल तो. बट ऑफ कोर्स दे हैव सम एजेंडा कि उनको भी उनके प्रोडक्ट्स बिकवाने हैं. तो जितना ऊपर आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट देंगे उतना जल्दी आप देखोगे और बाई करोगे, और यू गेट टेम्पटेड टू काइंड ऑफ इंटरेक्ट विद सम पोस्ट. मतलब उनको पता है कि आप डॉग लवर हो तो उसके वीडियोस पसंद है, तो आपको वही पहले देंगे, बिकॉज दे वांट टू इम्प्रोवाइज योर एक्सपीरियंस ऑन दैट प्लेटफॉर्म and also earn from it. So Okay. this keeping these two things in mind, they use your data, and this of course has been yeah, like agreed with you already. So they are not doing something wrong, but yeah, you are kind of agreeing to share your data because you want to use that product. Okay. So just Yeah. because you spoke about trend, there is a trend going on social media about startups. Okay. मैं स्पेसिस में भी तुमसे पहले बात करी है, तो तुम बोलती हो कि अगर मुझे कोई अच्छा स्टार्टअप मिलेगा तो शायद मैं उसमें भी काम करना पसंद करूंगी, क्योंकि मेरा ग्रोथ वहाँ पे एक्सपोनेंशियल होगा. ठीक है. तो किसी भी बंदे को स्टार्टअप में काम तुम करना सजेस्ट करोगी? क्योंकि देखो अभी
टेक्नोलॉजी तो एडाप्ट होने वाली है हर एक फील्ड में। मैं अपनी मम्मी से अक्सर बात करता हूँ कि क्या तुमने 1985 में कभी इमेजिन किया था कि मेरी कजिन बहन स्पेन में रहती है और हम उससे यहाँ बैठे बैठे फोन पे बात करते हैं। ठीक है, हमने तो 2005 में भी इमेजिन नहीं किया था कि फोन सब ये हो जाएंगे, नंबर्स निकल जाएंगे, वो बटन वाले नंबर्स निकल जाएंगे, बिकॉज एंड नाउ दिस इज अ वेरी फास्ट इनोवेशन अकॉर्डिंग टू मी। ओके, life has Yep. changed drastically in the last 5 years, I would say. Okay, तो स्टार्टअप्स में जब आप काम करने जाओगे, ओके, तो व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड वर्किंग इन अ स्टार्टअप? कि तुम भी वो आजकल हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार ये कंटेंट बना रहे हैं तो मैं भी कंटेंट बनाऊं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में इतने सारे पैसे कमा रहा है तो मैं भी कमाऊं, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है तो मैं भी करूं, ये स्टार्टअप कर रहा है तो मैं भी करूं। तो ये कीड़ा जो है स्टार्टअप्स में जाने का या उनके साथ काम करने का, व्हाट इज योर फाउंडेशन बिहाइंड इट और थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? Okay. तो मैं हमेशा मतलब कोई भी प्रॉब्लम या मतलब अलाइनमेंट पर से पहले पर्सनलाइज सोचती हूँ कि मेरे क्या बेनिफिट्स होंगे, मैं क्या वैल्यू एड प्रोवाइड कर पाऊंगी वो सेक्टर या रोल में। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई काइंड ऑफ प्रोसीड। तो स्टार्टअप्स में मुझे लगता है कि मुझे हाई ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हैंडल कर पाऊंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ओनरशिप ले पाऊंगी अपने काम की। दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी। और मेरे काफी सारे डोमेन्स में जो एक्सपीरियंस है वो मतलब स्टार्टअप में देर आर पर्टिकुलर पर्सन असाइन टू सम स्पेसिफिक थिंग्स, बट इवेंचुअली यू हैव टू बी वेयरिंग मल्टीपल हेड्स, मतलब बहुत सारे काम आप कर रहे हो, मतलब ये भी फाइनेंस भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो। तो दैट काइंड ऑफ ड्राइव्स मी कि मुझे काफी अपने स्किल्स पे काम करने मिलेगा एंड जो ऑलरेडी एक्वायर की है वो भी यूज करने मिलेगा टू प्रोवाइड सम वैल्यू एंड क्रिएट सम इम्पैक्ट। और ऑफ कोर्स इफ आई एम ऑन द फाउंडिंग टीम तो मतलब मुझे भी उसका बेनिफिट होगा। आई एम ऑफ कोर्स टेकिंग अ बिग रिस्क, मतलब क्योंकि काफी सारे स्टार्टअप्स जो है नॉट इवेंचुअली दे विल बी प्रॉफिटेबल और समथिंग, बट या मतलब दोनों ही चीजें हैं। वो रिस्क जैसे हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं हाई ग्रोथ या स्मॉल कैप्स में, आपको पता है कि प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है, बट यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क क्योंकि मतलब आपका इंटरेस्ट है वो चीज में, तो यू विल इन्वेस्ट टाइम और रिसोर्सेज इन दैट। तो सिमिलरली अगर आप स्टार्टअप में वो विजन को अलाइन करते हो, आपको वो डोमेन में इम्पैक्ट क्रिएट करना ही है, आपको लगता है आपको सीखने भी मिलेगा इससे, और यू कैन अफोर्ड टेकिंग दैट मच रिस्क ऑन फाइनेंशियल डोमेन, या फिर इवेंचुअली इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू मतलब स्टार्टअप में आपको ऑफकोर्स थोड़े ज्यादा आवर्स डेडिकेट करना पड़ता है, एटलीस्ट आई फील सो इफ यू आर फाउंडिंग टीम मेंबर और समथिंग। मतलब आपकी लाइफ और स्टार्टअप वो थोड़ा अलग अलग नहीं रहता, इंडिपेंडेंट नहीं रहता, काफी कुछ मिक्स हो जाता है। मतलब जो रोज की मीटिंग्स है मे बी आपको कुछ कैंसिल करना पड़े बिकॉज यू आर सो इन्वॉल्व विद दैट प्रोडक्ट और समथिंग एज कम्पेयर टू एमएनसीज। मतलब आपका कुछ एक रोल है, आप काम करो और मतलब देन यू हैव अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर आफ्टर 6 PM या मतलब जो भी है। नॉट नेसेसरी इन वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन, बट एटलीस्ट पहले तो ऐसे ही होता था आई फील कि हाँ आपने काम खत्म किया, आपने लॉग इन आवर्स एंड देन यू कैन स्टडी आउटसाइड, मतलब कुछ तो आप बाहर से पढ़ रहे हो सीख रहे हो वो बात अलग है, बट देन काम एटलीस्ट उतने टाइम के लिए भूल जाओगे। बट स्टार्टअप जब होगा आपको ही मतलब दिमाग में आइडियाज आते रहेंगे, रात को भी आइडिया आया चलो लिख लेता है, डॉक्यूमेंट कर लेता है, और हाँ मतलब कोई भी कस्टमर को भी इशू आया, मतलब आप अपना ही बेबी समझते हो वो प्रोडक्ट को, देन यू विल ऑफ कोर्स इन्वेस्ट मोर टाइम, तो थोड़ी अटैचमेंट बढ़ जाएगी, यू विल ऑल्सो या लाइक फेस डिफरेंट थिंग्स। तो मतलब मुझे ये थोड़ा थ्रिल चाहिए लाइफ में अभी मे बी, तो आई एम या लाइक ओपन टू स्टार्टअप, वर्किंग इन स्टार्टअप्स एज वेल। ओके, तो अभी लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो और एक ट्रेंड अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो है क्रिप्टो करेंसी का। ओके, तो क्रिप्टो के बारे में भले तुम मुझे ओपिनियन मत दो, डू यू इस टेक्नोलॉजी जो है ब्लॉकचेन, इसके बारे में आप स्टडी करते हो पैसिवली या देखते हो इसकी एप्लीकेशन और दूसरे कौन से फील्ड में है, या ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन फिनटेक में कैसे होगी, या आपकी कंपनी जो है उसमें रिसर्च हो रही है इसके बेसिस पे, नॉट नेसेसरीली ऑन अ पर्टिकुलर कॉइन, ठीक है, बट ऑन दिस टेक्नोलॉजी? ओके, सो वेब 3 या ब्लॉकचेन इन जनरल, मतलब मुझे लगता है कि लेट्स कंसीडर एनी टेक्नोलॉजी। मतलब पहले जब वेब 1 था तब वेब 2 ऐसे बहुत डिफरेंट लगता था कि कुछ स्कैम हो जाएगा,
तो अभी मुझे लगता है ये भी एक नई चीज है जिसके बारे में मैंने ओपिनियन नहीं बनाया, बट मैं जान रही हूँ, धीरे धीरे समझ रही हूँ वो चीज को कि ब्लॉकचेन क्यों और कैसे एप्लीकेशंस में काम में आएगा. सेम गोज विद वर्चुअल रियलिटी एज वेल. मतलब वो कौन से एप्लीकेशंस में एक्चुअली उसका यूज केस ज्यादा बेटर रहेगा. मतलब मुझे फॉर एग्जांपल फिनटेक में वर्चुअल रियलिटी नहीं चाहिए कि मुझे पेमेंट थोड़ा 3D में आके देखना, मुझे नहीं देखने भाई. तो बट मुझे एजुकेशन का मटेरियल देखना है इन केस में अगर कहीं दूर हूँ तो कोई एक्सपेरिमेंट ऐसे चल रहा है, अगर मैं उसको सिमुलेट कर पाती हूँ ऑनलाइन, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. ऑल्सो फॉर एंटरटेनमेंट आई थिंक लाइक वो अच्छा एप्लीकेशन है. एंड इवेंचुअली इन बिजनेस ऑल्सो, मतलब इफ यू कैन ट्राई ऑन डिफरेंट क्लोथ्स वर्चुअली, तो मतलब और एक्सपीरियंस एनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक वो आपके सामने ही घर पे है, आप 360 डिग्री घुमा के उसको देख रहे हो, तो दैट वुड गिव अ गुड फीलिंग. और मतलब ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो रियल मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी लग रही है फ्यूचर में कि they could come to life in few years maybe, and then they will be the new normal. मतलब फिर तो लगेगा कि हर शॉप ये वाला ऑफर कर ही रही है फीचर, मतलब ट्राई ऑन वैसा कुछ. तो आइडियाज मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही लगते हैं थोड़े से स्टूपिड से, और हमें तो वेब 3 भी मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली भले हम उसको स्कैम समझ रहे हैं या समथिंग, इट कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बट इवेंचुअली आई हैवंट फॉर्म्ड एनी ओपिनियन ऑन इट येट, क्योंकि उसके मुझे एडवांटेजेस भी कुछ पता है और डिसएडवांटेजेस भी. तो एडवांटेज में मैंने ये सीखा थिंग्स आर ओपन और पब्लिकली, मतलब आप अपने प्रोफाइल को बना सकते हो या वॉलेट को, तो यू कैन शेयर द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग. एंड ऑल्सो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने एक्सप्लोर किया था लाइक हाउ इफ नाउ सम हाउ मतलब बैंक उठ जाती है आपकी और दे से दैट यू हैवंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्टेड दिस पेमेंट, तो मतलब आपके पास एक ही सेंट्रल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये चीज कंफर्म करने के लिए. बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या होगा कि आपके पास मतलब ऑनलाइन वोटर्स ही थे जिन्होंने ये अप्रूव किया था पेमेंट समथिंग और ट्रांजेक्शन कोई भी. तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बेटर हैंडल होंगे मे बी ऑन वेब 3 वाले वर्ल्ड में. बट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी या फिर सिक्योरिटी, आई एम नॉट रियली श्योर ऑन दैट एस्पेक्ट. बट ऑफ कोर्स डीप मतलब एक्सप्लोर तो करूंगी बिकॉज आई एम अ टेक गीक, तो क्या नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, आई एम क्यूरियस अबाउट देम एंड आई वुड वांट टू एक्सप्लोर दैट वेल. तो अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, अगर उससे कोई सीख सके, क्योंकि आप भी अभी एकदम बिगिनिंग फेज में हो अपने करियर के, ठीक है? ओके, तो शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि थोड़ा ज्यादा करियर पे फोकस करना है. एंड आई वांट टू बिल्ड मिड टर्म में, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग अगर विजन देखने जाए तो आई वांट टू बी इन अ रोल वेयर आई एम काइंड ऑफ जनरेटिंग some benefits not from the time I provide but the value I provide. मतलब ऐसा नहीं कि इतने घंटे काम किया तो इतना मिलेगा, मतलब वैसे वाले रोल्स नहीं थे someday. और इवेंचुअली मतलब कुछ तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइफ्स को अफेक्ट करना है. बट ओवरऑल लाइक लाइफ के गोल्स में देखने जाए तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 3 जो गोल्स है बेसिक वाले अपने चाहिए. तो मुझे स्पिरिचुअली भी थोड़ा एडवांसमेंट्स करने हैं, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट, मतलब डे And बाय what डे about थोड़ा personal? थोड़ा जितना भी होता है. What about personal? ओके, पर्सनल not yet thought of it. Okay. मतलब दिमाग में बहुत कुछ आता है बट आई एम वेरी फिकल माइंडेड, मतलब वो वाले डोमेन में कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ नहीं. तो या आई एम येट टू एक्सप्लोर दोज एरिनाज ऑफ ऐसे लाइफ. होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, ऐसे होता है, बिकॉज मैं एचआर में भी काम कर चुका हूँ, कि आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, होती है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हम लोग सब लोग. तो डू यू थिंक कि नहीं यार अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी मैं करियर पे फोकस करूँ, और यू प्ले अलोंग, ओके, बिकॉज आप यंग हो ना बहुत, ठीक है, सबको होता है, ओके, और आप जब भी अभी व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, ओके, सो इट हैपेंस, सो और यू मतलब कॉन्शियसली कीप द डोर क्लोज्ड ऑन दैट पार्ट, कि नहीं भाई ठीक है, ये मेरे को प्रोफेशनली हेल्प नहीं करेगा या मेरे प्रोफेशनली मेरे को डिस्टर्ब करेगा, है ना? नहीं, फिलहाल आई एम फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा है होने देता है इन Okay. दैट एस्पेक्ट, मतलब पर्सनल वाले में. तो my last question to you is,
what is the meaning of money for you? Okay. For example, the moment I did course in stock market, I became obsessed with money. I give money a lot of importance. That particular course showed me that how important money is for our life. आई एम नॉट क्रेजी फॉर मनी. मैं इलीगल तरीके नहीं अपनाऊंगा पैसा कमाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है. ओके. आप मैं मानता हूँ कि फूड इज द रियल गॉड इन दिस वर्ल्ड. ओके. एंड टू अक्वायर फूड ऑल्सो वी नीड मनी. ओके. आप बिना पूजा किए सो सकते हो, लेकिन बिना खाए पिए सो नहीं सकते हो. ओके. आपको अच्छी मेडिकल सर्विसेज चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए. आपको अपने फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, उसको भी आपको पैसा चाहिए. आज हम ये लैपटॉप, माइक, अच्छी वेबकैम पे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कम वाया मनी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी फॉर यू? एंड देन लास्ट में, इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू परस्यू अ करियर इन टेक, what are the few advices that you want to give them? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग, सिर्फ कुछ लोग है ना, एक्टर बनते हैं कि यार बहुत फेमस हो जाऊंगा, बहुत पैसे मिलेंगे, ठीक है, लोग मेरे पीछे भागेंगे, उस वजह से एक्टर बनते हैं. उनका एक्टिंग के लिए एज सच कोई पैशन नहीं होता. तो उस कॉर्ड को टैप करके तुम जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस दो? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है, तो मनी को मैं ऐसे एक एनेबलर की तरह समझती हूँ. जैसे पहले भारतीय सिस्टम थी, ये देके ये मिलेगा, तो मनी फिलहाल तो वही है कि कुछ तो हम हार्ड वर्क करेंगे, मतलब कुछ एफर्ट्स देंगे या किसी को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले हमें कुछ वो और एक मॉनिटरी टोकन की तरह देगा, जो आप किसी और चीज को मतलब यूज कर सकते हो उसको एक्सचेंज करने के लिए बेसिकली. तो वो अल्टीमेट गोल नहीं होगा, बट इतना होना चाहिए सफिशिएंट हमारे पास कि हम अपने टाइम पे मतलब बेसिकली हम खुद के टाइम को कंट्रोल कर पाए, हमारे चॉइसेस को कंट्रोल कर पाए. तो उतना सिक्योरिटी पहले बिल्ड कर लेना चाहिए, एंड देन इट्स मतलब आ जाएगा वो फ्लो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. मे बी आई फील सो. एंड अबाउट करियर इन टेक, आई फील के काफी सारी इनहिबिशंस होते हैं. लोगों को लगता है मुझे यही पढ़ना पड़ेगा, इतना आना चाहिए तो ही मैं जा सकता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. सो कोडिंग और नो कोडिंग, यू कैन एंटर इन टेक करियर. तो कोई भी पॉइंट मतलब ऐसे एक लेट एंट्री पॉइंट नहीं होगा. आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो कोडिंग, मतलब 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के, 60 years आफ्टर भी मतलब यू कैन कोड इफ यू हैव द पैशन टू काइंड ऑफ मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक कीड़ा है, या इफ यू फाइंड हैप्पीनेस while coding or learning new things in general, तो आप कोडिंग या मतलब प्रोग्रामिंग या करियर इन टेक परस्यू कर सकते हो. एंड फ्यू थिंग्स दैट यू विल गेट ओवरवेल्म बाय, टेक इतना ज्यादा डिवर्सिफाइड और कॉम्प्लेक्स हो चुका है आजकल, तो इट विल फील ओवरवेलमिंग इन बिगिनिंग. कोई भी नया बंदा आएगा, इट विल डेफिनेटली फील, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो अकेला फील करता है, हमेशा एवरी वन हैज बीन अ बिगिनर. और इन एवरी स्टेज ऑल्सो वी फील दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर मतलब ऐसे इम्पोस्टर टाइप ऑफ सिंड्रोम फील होता ही है कि नहीं यार, इसको तो इतना आता है, मुझे लगता है मैं कहाँ से लकी हो गया और यहाँ आ गया. सो बट दैट इज इन द केस, मतलब आपने ऑफ कोर्स मेहनत की रहेगी तभी आप कहीं पे पहुंचे हो, मतलब सम अदर वे. सो आई फील के ओवरवेल्म नहीं होना है, खुद के जर्नी को किसी और के जर्नी से कंपेयर नहीं करना है. खुद का फर्स्ट डे अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग या कुछ भी सीख रहे हो इन जनरल, एंड यू आर कंपेयरिंग विद अ प्रो प्लेयर के भाई जिसने तो कॉन्टेस्ट में ऐसे एकदम रेटिंग हायर लेवल अचीव कर लिया, तो दैट वुड बी अ मिसमैच. और फिर आप मतलब जेलस हो जाओगे, बट यू वोंट थिंक ऑफ कोलैबोरेशन इंस्टेड. मतलब आप कैसे खुद भी बढ़ सकते हो किसी और के साथ भी, मतलब यू फाइंड पीपल ऑन सेम लेवल, मतलब जो वो भी सीख रहा है मैं भी सीख रहा हूँ, एंड देन यू कैन कोलैबोरेट के उनका एक्सपर्टीज थोड़ा एसईओ में है, आपका वेबसाइट बनाने में है, कोलैबोरेट करके दोनों ही कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका कोई अच्छा आउटकम लाते हैं. दैट विल बी परफेक्ट मतलब काइंड ऑफ कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट जो आप प्रेफर करोगे. और आजकल टेक कम्युनिटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब मे बी ट्विटर पे देखो या डिस्कॉर्ड स्लैक चैनल्स है, लिंक्डइन पे देखो, मतलब हर जगह पे इंजीनियर या सब पे मतलब टेक कम्युनिटी आपको मिलेगी ही. तो यू नीड टू इन कंपनी ऑफ गुड पीपल, मतलब अगर आपको कॉलेज से नहीं मिल रहे लोग, तो मतलब कहीं ना कहीं और तो मिल ही जाएंगे हु हैव गोल्स सिमिलर टू यू, हु आर इन देयर जर्नी एट द स्टेप वेयर यू आर. मतलब
आप डायरेक्ट सीईओ को जाके नहीं बोल सकते चलो हम लोग साथ में कोडिंग करते हैं पेयर प्रोग्रामिंग, बट यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ फाइंड अ पेयर प्रोग्रामर विथ कॉलेज डिग्री सेम एज योर्स, या मतलब जो भी कोलैबोरेशन करना चाहता है, यू विल फाइंड दोज ओपन पीपल इन डिफरेंट टेक कम्युनिटी, सो बी एक्टिव देयर आई वुड से। और बस एक्सप्लोर करते रहो जर्नी पे टिक के, मतलब यू विल फाइंड वेरियस थिंग्स फैसिनेटिंग। वेब3 आएगा कल, कुछ और नया आएगा, बट इफ यू आर फोकस्ड के भाई मैं ये करना चाहता हूँ और करूंगा, मतलब एट द एंड यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स आल्सो, बट वो साइड टाइम में होना चाहिए। आपका मेन फोकस जो है वो मतलब परस्यू करते रहना चाहिए। वो प्लान आपका बोलता ना, एनी चाइल्ड शुड बी अ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग से, मतलब आउटसोर्स नहीं करने आपके डिसीजंस किसी और पे कि कोई और ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। तो यू जस्ट नीड टू या लाइक गो विद द फ्लो, आपने जो प्लान किया है वो वर्कआउट किया या नहीं, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहने हैं consecutively, and eventually you will be able to yeah kind of have a great career in tech, and also at a sustainable way. So मैंने देखा कि मतलब मैंने खुद भी किया है इनफैक्ट कि 12-12 घंटे मतलब पहले कॉलेज जाते हैं और फिर उसके बाद भी कोडिंग करते हैं, देन वी हैव नो अदर लाइफ। तो ऐसा भी नहीं करना, बिकॉज इवेंचुअली कब एंजॉय करोगे, अभी नहीं तो। तो having a balanced life, also working on goals together, collaborating with people, learning from them, मतलब ego side में रखो, और yeah just be open to exploring different opportunities at different stage, और खुद की वैल्यू मतलब एक प्रोजेक्ट से इतना मत अटैच हो जाओ कि मतलब बाकी का कुछ पता ही नहीं है तुम्हें वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो यू कैंट फंक्शन इन completely isolated way, मतलब आपको कुछ ना कुछ और भी चीजों का पता होगा तो यू कुड या लाइक बेटर इंटीग्रेट योर सिस्टम्स। तो ऐसे या थोड़े इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग येट अ ब्रॉडर लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी जब टेक की, तो मजा आएगा मतलब टेक में। तुमको मजा आया कि नहीं पॉडकास्ट करके? काफी काफी मजा आया। है ना? तो मैं इसलिए तुम्हें बुलाना चाहता था क्योंकि मैंने देखा है स्पेस में कि तुम्हारे पास देने के लिए है, ठीक है, और तुम भी स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन देती हो लोगों को। मैंने बोला ना तुम्हारे अंदर भी एक टीचर छुपा हुआ है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, whoever has watched this full video, when we are going to upload this, that we will be putting Astha's LinkedIn ID and Astha's Twitter ID in the description box so that you can follow her, connect with her at an organic level. And I would request Astha also to conduct few spaces which are theme based, only based on technology. अभी आप अटेंड करती होंगी दूसरों के, लेकिन if you can build your own community in the future, okay, because see, fortunately or unfortunately we are living in a culture which is influenced by all these startups. मैं ना स्टार्टअप्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एज ए इन्वेस्टर मैं उनको वैल्यूएशन पे ट्रोल करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, आप सोशियो इकोनॉमिकली इतना कंट्रीब्यूट करते हो, क्योंकि जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है वो फिर क्राइम करता है मेरे हिसाब से, ठीक है, बिकॉज यू नीड टू वर्क, यू नीड टू अर्न मनी एंड यू नीड टू प्रोवाइड वैल्यू टू द सोसाइटी। ओके, वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज ये पॉडकास्ट करके। मैं डिटेल में नहीं सीख पाया, पर मैंने ग्रॉसली सब टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिटेल में तुमसे ब्लॉकचेन पे बात करूंगा तो वो 2-2.5 घंटे का पॉडकास्ट है अलग से, क्योंकि फिनटेक तो मैं रियलिटी में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, फिनटेक के लिए तो मैं तुम्हें वापस इन्वाइट करूंगा ही, कि हम देखेंगे कि वो इवन आई इकोसिस्टम। वुड लाइक टू बी। यस, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू जैसे to present something via a slide share, okay, because I may not have specific questions for you to ask. जैसे मेरे पास कुछ डाउट्स होंगे वो Q&A सेशन रखेंगे हम लोग, लेकिन फिनटेक एक ऐसा स्पेस है जो इंडिया में एक्सप्लोड होने वाला है। अभी तक अंडर एक्सपोज्ड है, अभी तक गांव-गांव में उतना टेक्नोलॉजी गई नहीं है, ठीक है, अब जब जाएगी, ठीक है, तब वो स्पेस। और बैंकिंग कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ जब बात करता हूँ तो बोलती थी पहले आरडी होता था, एफडी होता था, मैक्सिमम पीपीएफ होता था, लोग लोन देते थे और इंटरेस्ट रीपे करते थे। बट टुडे व्हेन शी इज now on the verge of retirement, when she sees the younger generation of employees working in the banking ecosystem, so it is interlinked with this fintech ka thing, okay.
वैसे नॉट तो वी जस्ट विल बैंक्स, मतलब कोई भी सेक्टर हम कंसीडर कर ले, चाहे यस इंश्योरेंस हो या बाय नाउ पे लेटर ऑप्शंस। insurance insurance is such a underexposed sector in India considering our population, है ना? So I hope तुम्हें मजा आया होगा, मुझे तो काफी कुछ बहुत है मजा एक्सप्लोर आया, करने के लिए। है ना? बिकॉज ऐसे ही तो मुझे हम भी लोग सीख, काफी मजा आया। हाँ, is this maybe your first time you are doing a podcast audio visual? Yeah, right. This is the first करेंगे, time. I have yes. been, yeah, like on one-on-one sessions with mentees या ऐसे, Hmm. but हाँ वो particularly ऐसे broadcast करने के लिए नहीं था, तो this So is I the would first podcast. yes, so I would request whoever is listening to this podcast, when we are going to upload it, share it with guys who are in technology field, and they will at least get markers to pursue their career into technology, because sector analysis की भी इसमें बात की गई है, so it will be very helpful for people to choose an appropriate sector for them considering their temperament and skill set.